بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ ابھی تو ویسے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مجھے بتا دیں اگر آپ نے اس کے اوپر رسپانس دینا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر اس کو بند کر دیتی ہوں، کیونکہ ویسے تو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، میں اس کا 4-5 ایپیسوڈ تک دیکھوں گی۔ اگر تو آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو ٹھیک ہے، باقی تو آپ لوگوں نے رسپانس اس مہینے جو ہوئی ہے نا میرے ساتھ، پہلے سے بھلے آپ لوگ ٹریک پہ جاتے جاتے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، کتنا برا رسپانس۔ میں نے شارٹ ناول بھی دیکھے، میں نے لانگ ناول بھی دیکھے، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس کسی پہ بھی اچھا نہیں آ رہا۔ تو اب یہ 4-5 قسطیں میں نے دیکھنی ہے، اگر اس پہ رسپانس اچھا رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں نے یہ والا ناول سٹاپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کی قسط کی طرف۔ آسمان کا شفاف نیلا رنگ رفتہ رفتہ اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ اب تک حد نظر پھیلا آسمان سرمئی رنگ میں ڈھل چکا تھا، اور اس سرمئی رنگ پہ زرد رنگ کا اداس چاند چھوٹی چھوٹی بے ضرر بدلیوں سے الجھتا اپنا دامن چھڑاتا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بڑے بڑے بادلوں کی سنگت سے بچھڑی یہ بدلیاں بار بار چاند کے راستے میں حائل ہو کر اسے چھیڑ کر اس کی اداسی میں خلل ڈال رہی تھی، جس پر چاند کی اداسی اور بیزاری میں قطرہ قطرہ اضافہ ہو رہا تھا، اور ان بدلیوں کو چھٹک چھٹک پیچھے ہٹا رہا تھا، بار بار چھڑک رہا تھا، مگر وہ اتنی شرارتی تھی کہ اس کا راستہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ ان کی شرارت و رٹکیلیوں میں اور بھی آوارہ بدلیاں شامل ہو چکی تھیں اور چاند کے گرد گھیرا تنگ کر چکی تھیں۔ اس کا دل چاہا فوراً جائے اور اداس سے بیزار چاند کو ان ٹھٹھے باز آوارہ بدلیوں کے گھیرے سے نکال کر اپنے پاس لے آئے، اور پھر آرام سے سہولت سے آرام سے بیٹھ کے اس چاند سے اس کی اداسی کا سبب پوچھے۔ تم اور کسی کو نہ صحیح، صرف مجھے اپنا سمجھ کے، اپنا راستہ اپنا غمگسار سمجھ کے یہ بتا دو کہ تم اتنے اداس کیوں؟ کس بے مہر نے تمہیں دکھ پہنچایا؟ کس نے تمہیں اداسی کا رنگ بخشا؟ کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے پوچھتی ہوں، میں اس سے لڑتی ہوں، آخر کیوں کیا اس نے ایسا؟ حالانکہ تم تو اتنے اچھے کو جس کو بھی تنہا دیکھتے ہو اس کے ہو جاتے ہو، جبکہ یہ بے مہر بے مربت لوگ تمہاری صدا کو، اس وفا کو بھی ہرجائی کا نام دیتے، حالانکہ لوگ خود ہرجائی ہیں۔ وہ چپکی زبان میں چاند سے باتیں کرتی، نہ جانے کیا کہہ گئی تھی اور کیا کیا سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے رخسار پر بارش کی پہلی بوند نے بوسہ دیا۔ اس نے بری طرح چونک کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس بوند کو چھو کر محسوس کیا، اور ایک بوند کو محسوس کرتے کرتے اور بوندیں بھی اس کو چھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ تو کیا چاند چھپ گیا؟ تھک گیا ان بدلیوں سے لڑتے لڑتے؟ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جس پر چاند کا نام و نشان نہیں تھا، البتہ بدلیاں کہکے لگاتی پھر رہی تھی، اور اب آسمان کے فراق سینے پر ان کا راج تھا، وہ ہواؤں کے سنگ اٹھتی پھر رہی تھی، جسے چاند کو وہاں سے بھگا کر جشن منا رہی ہوں۔ ماں صدقے چلی جائے، بدل تو چاند دی کہانی بنا دیتی۔ اور اب چاند کی اداسی اس پر اتر آئی تھی، اس کے لیے وہ اداس ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کس کے لیے اتنی اداس ہو۔ کومل اپنے دھیان میں اپنی اداسی میں ایسی محو کھڑی تھی کہ اس کی آواز پر گڑبڑا کے رہ گئی۔ حرمت تم؟ کومل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھور کے کہا تھا۔ ہاں میں، کیا تم کوئی اور سمجھی تھی؟ حرمت کا انداز زومائی تھا، جس پر کومل کو مزید کفکی ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ چکی تھی۔ میرا مطلب ہے رات کے وقت بارش میں بھیگنا ٹھیک نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ حرمت نے بے دھیانی میں بارش میں بھیگتی کومل کو بارش کی سمت متوجہ کے اپنی بات کھول کر دی۔ اتنی نازک نہیں ہوں کہ بارش کی بوندوں سے بیمار پڑ جاؤں، وہ اپنے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے سر جھٹک کر بولی۔ تم جتنی نازک ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، چلو نیچے چلتے ہیں، سبھی ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھتے ہوئے اتنا انجوائے کر رہے ہو، تم یہاں بور ہو رہی ہو۔ حرمت نے کومل کا بازو پکڑ کر اسے ٹیرس سے کھینچ کر کمرے میں دھکیلا، اسے پتہ تھا کہ وہ اتنی جلدی وہاں سے نہیں ہٹے گی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں بور ہو رہی تھی؟ کومل اس وقت اس کے نیچے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے جرا کر رہی تھی۔ اوکے بابا، مان لیا کہ تم بور نہیں ہو رہی بلکہ انجوائے کر رہی تھی، لیکن میری جان ہم چاہتے ہیں کہ تم اکیلی انجوائے نہ کرو بلکہ ہمارے ساتھ مل کر انجوائے کرو۔ نیچے چلو، ہم سب نے آئس کریم منگوائی ہے، زین آئس کریم لے کر آ چکا ہوگا۔ حرمت کے بار بار اس چار کرنے پر کومل کو آنا ہی پڑا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے کومل کی سب سے پہلی نظر الیزے پر پڑی، جو شاید دانیال پھر احمد کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور یہ بات اس حویلی کی تاریخ کی اہم ترین بات تھی کہ الیزے فندی سب کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بیٹھ ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی، اور یہ بات وہاں موجود لوگوں کے لیے کسی احساس سے کم نہیں تھی کہ الیزا ان کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھی باتیں کرتی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ دیکھ کر ان لوگوں کا خون بڑھا تھا۔ مان لو الیزا نہ ہو گئی کوئی لیڈی ڈیانا ہو گئی۔ کومل کو دیکھ کر کوفت ہوئی تھی، نہ جانے کیا بات تھی کہ الیزا باقی سب کو جتنی عزیز تھی کومل کو اتنی خار کی طرح چبھتی تھی۔ اچھا کومل کھڑی کیوں؟ بیٹھو نا۔ دانیال نے ایک نظر حرمت کو دیکھ کر کومل کو بیٹھنے کا کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کومل نے اپنے چہرے کے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے نارمل سے لاپرواہ لہجے میں پوچھا تھا۔ مت پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے، دانیال نے مسکراتے ہوئے جس انداز میں نفی میں گردن ہلائی، اس پر زبردستہ کہکا پڑا، اور اس کہکے میں جویریہ، مدت، انوشا اور احمد بھی شامل تھے، جبکہ اون اور عدید تو ہنس ہنس کے دورے ہو رہے تھے۔ اون اور عدید اپنی الیزا آپی کی طرح طرح کی پہیلیاں بجھوا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے جواب ڈھونڈ کے لا رہی ہے کہ ہم بھی ایسی معلومات سے بے خبر ہیں۔ اب تم یہی سوال دیکھ لو کہ ایک مشہور شخصیت کا نام لے کر پوچھ رہے ہیں ان کی قبر میں کون دفن ہے؟ دانیال نے دل کھول کے ہنستے ہوئے ان لوگوں کا سوال بتایا۔ کومل اس سوال پر چونک گئی۔ اب تم بتاؤ کومل، دانیال نے شرارت سے کہا۔
ज़ाहिर है भाई, जिसकी कब्र है वही दफन होंगे, और कौन हो सकता है भला? कोमल ने हैरानी से देखते हुए जवाब दिया। ग्रेट, देखा मोहतरमा लीज़े, ऐसे होते हैं ज़हीन बच्चे, फ़ौरन जवाब हाजिर। तानियाल ने कोमल को दाद देते हुए लीज़े को शर्म दिलाई। जॉन और दीद के इस सवाल पर बेसाख्ता पूछ बैठी थी कि कौन दफन है। ये चीटिंग है तानियाल भाई, पहले आपने ऑन और दीद के साथ मिलकर मशवरा किया और फिर मुझे बेवकूफ़ बनाया और इनके सवाल पे ऐसे हैरानी ज़ाहिर की कि मुझे भी इनका सवाल सुन के हैरानी होने लगी। इसलिए मैं इस सवाल को सीरियस लेने लगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ बम धमाके और खुदकुश हमले नहीं होते, यहाँ धोखे और फरार भी होते हैं, जिनसे आजकल कब्रिस्तान भी महफूज नहीं। यहाँ तो पता नहीं किस किस की कब्र में कौन कौन दफन है। बच्चों के मजाक में कही की बात इतनी संजीदगी का रूप ले गई थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग चुप रह गए थे। वो सच्ची तो कह रही थी, बल्कि वो बैठे बैठे इनको अपने मुल्क के हालात का आईना दिखा गई। इसकी बात पर किसी पर भी एतराज़ या इख्तलाफ नहीं हुआ था। है इतनी खामोशी क्यों है जी? ज़ैन ने डरते डरते ड्राइंग रूम में कदम रखा। इन सबको खामोश देखकर ठिठक गया। हालांकि वो आइसक्रीम लेकर उछलता कूदता डांस करता यहाँ तक आया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो माहौल बेहद खुशगवार छोड़ कर गया था। लाओ मैं आइसक्रीम निकालती हूँ। हुरमत ने उठकर इनके हाथ से शॉप पर थाम लिया। जब वो बाउल्स में आइसक्रीम सजाए वापस ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ सब मौजूद थे, लेकिन अलीज़ा जा चुकी थी। आज वो सुबह ही सुबह सबसे पहले उठकर बैठ गया था, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर वो खरगोश की तरह नींद के मज़े लेता रह गया तो बहुत पीछे रह जाएगा, बल्कि पछताता रह जाएगा। आज इसकी नौकरी की खुशी और बलबले ने ठीक से सोने ही नहीं दिया था। आज रात के 12 बजे ही इसका दिल चाह रहा था कि सुबह के 7 बज जाए, ताकि इसे मज़ीद 7 घंटों के इंतजार की कोफत ना उठाना पड़े। लेकिन वक्त ऐसा अटल था कि वो चाहे आइडिया भी रगड़ लेता, अपने असूल, अपने मुकाम, अपने औकात से आगे पीछे नहीं सरक सकता था। वैसे सरकार एड्डी भी की खुशी हो गई नौकरी मिलन दी कि 12 बजे 7 बजे जाने हद हो गई। राम ना सो मर जा, उठेगा सवेरे तो 7 बज जाएंगे। वक्त एक ऐसा घोड़ा जिसकी लगाम खुद अल्लाह के हाथ में थी, और वो अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं कर सकता था। वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बड़ी सुबह रफ्तारी से चल रहा था। 12 घंटों में रात का सफ़र तय करता था और 12 घंटों में दिन की मुसाफत तय करता था। कभी 1 मिनट या 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होते पाया था। वजह क्या थी? खुदा के हाथ में लगाम और बस। नाश्ता नहीं करोगे? वो अचानक इस ध्यान में गुम था कि आबदा खातून की आवाज़ भी न सुन सका। मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, नाश्ता करोगे ना? इन्होंने करीब आकर इसे मतवज्जा किया। वो चौंक कर सीधा हुआ। वैसे बेचारे था, मैंने हाले तक नौकरी वाले का ना नहीं पता लग सकिया। जी अम्मी, नाश्ता करके जाऊंगा, आज पहला दिन है, वहाँ पता नहीं क्या मिलता और क्या नहीं। अदील ने समझदारी से काम लिया। अच्छा अदील ना आयला, क्योंकि पहले वो सिर्फ नौकरी तलाश करना चाहता था। कभी नाश्ता कर लेता, कभी छोड़ देता, मगर आज वो काम पे जा रहा था। दिन भर काम में मसरूफ़ रहने के साथ साथ अगर भूखा भी रहता तो यकीनन कल दोबारा काम पे जाने के लिए ज़रा भी सकत ना रहती। गल तो सही है, दिमाग का इस्तेमाल कर गया मुंडा। ठीक है, तुम बाहर आकर बैठो, मरियम नाश्ता लगा देती है तुम्हारा। वो इसका कंधा थपक के बाहर निकल गई और वो भी इनके पीछे पीछे बरामदे में चला। मरियम छोटी सी टेबल पर नाश्ता लगाने लगी और थोड़ी देर बाद वो नाश्ता करके आबदा खातून और मरियम से दुआ लेकर बाप के पास आ गया। इनकी खामोश दुआ दामन में समेट कर फ़ौरन घर से निकल गया। अब इसे मतलूबा एड्रेस पर पहुंचने की जल्दी थी। बस स्टॉप पर आकर 5 मिनट इंतजार किया और शुक्र था कि छठे मिनट में बस की टूटी फूटी सी शक्ल नजर आ गई। लेकिन लोग इस टूटी फूटी बस को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। बस खचाखच भरी हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही बस रह गई थी। जैसे बस करीब आकर रुकी, पूरे बस स्टॉप पर एक शोर, एक खलबली सी मच गई। कुछ सवारियां बस से उतरने के लिए बेचैन थी और कुछ इस सब बस में सवार होने के लिए बेताब हो रही थी, और इन बेताब लोगों में वो भी सरफहरिस्त था। वो भी इस बस में सवार होने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था, मगर लोगों का हजूम इतना ज़्यादा था कि इसे लग रहा था कि आज बस की वजह से अपनी इतनी मुश्किलों से मिलने वाली नौकरी से महरूम होकर रह जाएगा। जबकि नौकरी से महरूमी का ख्याल इतना सुहाने रू था। वो भी अपना महज़्ज़बपन और तमीज़ बलाए ताक रखते हुए इस हजूम में थक्कम पहल में शामिल होकर तकरीबन 7-8 मिनट की मुसलसल तगदो के बाद बस में सवार होने और एक अदद सीट हासिल करने में कामयाब हो ही गया। वेरी गुड। ये तो वो साहब हो गया जैसे हमारी यूनिवर्सिटी बस शटल जब शाम को चलती है ना, तो चीचा वतनी बस का जो हाल होता है, ओ हो बहुत ज़ालम हाल होता है। तो मैंने लगता है ये लोकल दवी यही हाल है। इसने एक बेचैन सी नज़र अपनी मजबूत कलाई पर बंदी घड़ी पर डाली और इतने से तौक़ुफ़ से इस गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी, और इसने एकदम जैसे खुद शुक्र का सांस लिया। यूँ ही वक्फे वक्फे से खड़ी देखते हुए इसका बाकी का सफ़र कटा और ठीक आधे घंटे बाद अपने मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। लेकिन इस एड्रेस पर पहुँच कर इसके कदम अपनी जगह पर जमे रह गए। इसकी नज़र सड़क किनारे नस्ब इस बोर्ड पर थी जिसके नीचे इम्तियाज़ कश्मीरी का नाम दर्ज था। इस वक्त इस बोर्ड पर दर्ज चाचा इम्तियाज़ के नाम नहीं बल्कि किसी और चीज़ ने मंजमंद किया। वो भी तक इसे बार पर पढ़े जा रहा था, चाइना वर्कशॉप। तो गए से वर्कशॉप पर काम करना था। इसके जहन में तमस्कराना सा सवाल उभरा, जैसे वो खुद ही अपने आप का मजाक उड़ा रहा हो। अगर यही करना था तो वो इतने दिनों से अपनी डिग्री फाइल में सजाए क्यों घूम रहा था? क्या हासिल था इसका इस जिसको हासिल क्या था हासिल था इसका जिसको हासिल करने के लिए इसने इतने साल दिन रात पढ़ाई की, मोटी मोटी किताबों से मगजमारी की, इतने इम्तिहान पास किए और अपनी कामयाबी के लिए इतनी दुआएं मांगी। लेकिन आज सब कुछ धरे का धरा रह गया। बल्कि चाइना वर्कशॉप का बोर्ड बड़े तमस्कराना अंदाज में इसके हाथ में पकड़ी फाइल का मुँह चढ़ा रहा था, जिसे वो घर से निकलते हुए बड़ी एहतियात और बड़ी खुशी के साथ अपने साथ लेकर आया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इसकी क्वालिफ़िकेशन भी देख लें। मगर ज़रूरत भला क्या पड़ सकती थी? ज़रूरत से पहले इसकी डिग्री मुँह छुपाने से पर मजबूर होगी। वो सड़क किनारे खड़ा अपनी फ़ाइल को बेबसी से थामे ज़ख्मी नज़रों से देख रहा था। ओए बाऊदील, तुम आ गए?
चाचा इम्तियाज़ अचानक वर्कशॉप के अहाते से बाहर निकले तो पहली नज़र इसी पर पड़ी जो अपनी जगह पर जामत खड़ा वर्कशॉप के अंदर जाने की हिम्मत मजतमा कर रहा था। चाचा इम्तियाज़ की आवाज़ पर एकदम चौंक कर अपने हवासों में वापस आ गहरी सांस खींची। होया तो बड़ा पड़ा वैसे बेचारे दे नाल, लेकिन वो हमारे माशरे का अलमी है, यही है, होता यही है। डिग्रियों पे डिग्रियां ले लेके बैठे हुए बेचारे लोग, जॉब है नहीं। रात के 3 बजे का वक्त था जब अचानक इसकी आँख खुली, बेसाख्ता किसी ख्याल के तहत उठकर बैठ गई। कमरे से बाहर निकले, इनका रुख किचन की तरफ था, क्योंकि किचन की जलती हुई लाइट के साथ साथ बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ भी आ रही थी। और किचन के दरवाजे में पहुंच कर इन्हें वही नजर आया जिसकी वो तवक्को करी थी। जौदत। इनकी आवाज़ में सख्ती का अंसर नुमाया था। वो जो अपने ध्यान में मगन बड़ी एहतियात के साथ अपने लिए खाना कर निकाल कर गर्म कर रहा था, इनकी आवाज़ पर ज़रा सा चौंक कर सीधा हुआ। जी मॉम। इसने अपने तासुरात कंट्रोल करने में सेकंड का वक्त लिया। ये कौन सा वक्त है घर आने का? इनके लहजे की सख्ती मज़ीद गहरी हुई थी, क्योंकि अगर वो इस तरह सख्ती से पेश ना आती तो कल को बाकी घर वालों के साथ साथ इनके बड़े बेटे और शौहर का ज़रा इल्ज़ाम इन पर ही आता कि इन्होंने इसे बिगाड़ा, क्योंकि वो इसकी माँ थी और अक्सर औलाद के बिगड़ने के सबब लोग माँ को गर्दान थे, चाहे इसमें माँ का रत्ती बराबर भी कसूर ना हो। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। जौदत, मैं क्या पूछ रही तुमसे? अब की बार इनकी आवाज़ दबी हुई मगर लहजा काफ़ी तेज़ था। मॉम, घर आने का भी कोई वक्त होता है? घर तो घर है, जब चाहे जाओ, नो टेंशन। वो इंतहाई लापरवाही से कहता फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और रायते का बाउल निकाल कर टेबल की सिमटा है और दाएं पाँव की मदद से कुर्सी का सीट कर खाना खाने के लिए बैठ गया। ये रूटीन घर की नहीं, होटल्स की होती है, जब चाहे और जब चाहे जाओ, जहाँ किसी को कोई परवाह नहीं हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहाँ तुम्हारी नो टेंशन भी सूट कर जाता है। तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर है, ये बड़ी हवेली है। यहाँ आज तक ऐसी आवारागर्दी किसी ने भी नहीं की जैसे तुम कर रहे हो। अगर तुम्हारी हरकतों का भाई साहब वकार फंदी को पता चल गया तो एक लम्हे की भी तखीर के भी तुम्हें घर से निकाल देंगे। फिर करते रहना जी भर के आवारागर्दी। सरवत बेगम का अंदाज़ बेहद तेज़ और सख्त था। वो जौदत को हर मुमकिन तरीके से इन हरकतों से बाज रखना चाहती थी। जब भी इनका लेक्चर रात के 3 बजे भी जारी था, जिसका बहरहाल जौदत अफंदी पर ज़रा भी असर नहीं था। वो बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ़ था। इसने सलाद की प्लेट से खीरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हुए सरवत बेगम की खामोशी नोट की और फ़ौरन इस्तफामिया नज़रों से इनकी सिम देखा। वो लब भेजे बहुत कड़ी नज़रों से देख रही थी। आप खामोश क्यों होगी मॉम? कुछ और भी कहिए ना, मैं सब सुन रहा हूँ, डोंट वरी। इसने अपनी माँ के फिर से बोलने पर रुखसा कि तो भौंकी जा, मैं सुनना थे भैया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि आप भौंकती रहिए, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। देखिए किड्डी माँ से आनी। सरवत बेगम ने गुस्से और मलामत की हद कर डाली। उफ़, खुदा अल्लाह माफ़ी दे, आप क्यों रात के इस पैर मुझे गुनाहगार करने पर तुली हुई हैं? आप मेरी माँ हैं, आपका एक एक लफ्ज़ मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं भला क्यों ऐसा कहने लगा? इसने तौबा तौबा करते कानों को हाथ लगाया। इस वक्त तुम कौन सा कोई नेक काम करके आ रहे हो जो तुम्हें गुनाहगार होने से डर लग रहा है? वो हकीकतन गुस्से की बहुत तेज़ थी और जिनकी मैंने सबसे ज़्यादा गुस्सा जौदत ने नहीं दिलाया था। हालांकि इनके बाकी भी बच्चे थे, आज़र, हुर्मत और मुद्दत। इन्होंने कभी भी माँ को इस तरह तंग नहीं किया जैसे जौदत करता था। जौदत हर वो काम करके रहता जिससे इसे मना किया जाता। वो ज़हीन भी था, लायक भी, मगर अच्छा बच्चा नहीं था। इसने आज तक कोई भी अच्छे बच्चे वाला काम नहीं किया सिवाय तलीमी रिकॉर्ड के। अच्छी पोजीशन लेना इसका रिकॉर्ड था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हर बार एग्ज़ाम के दिनों में इसका अपने कज़न्स दानियाल, अहमद, जैन और हमाद वगैरह से कंपटीशन हो जाता, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते फर्स्ट पोजीशन को अपना टारगेट बना लेता। और हर बार ये टारगेट जीत कर अपने माँ बाप और ताया वकारफंदी, जिनको वो सब डैड कहते थे, को लाशौरी तौर पर बेपनाह खुश कर देता। अगर कभी इसे एहसास हो जाता कि घर वाले इसकी इस कामयाबी पर किस कदर खुश होते हैं तो यकीनन वो अगले साल इनकी खुशी मलिया मेट करके रख देता। आप कैसे कह सकती है कि मैं इस वक्त कोई बुरा काम ही करके आ रहा हूँ? वो इतने मजबूत लहजे में बोला कि सरवत बेगम ठिठक गई, लेकिन अगले लम्हे इसकी बात को मजाक समझ कर सर झटक गई। तो तुम कौन सा इस वक्त तहज्जुद पढ़ के आ रहे हो? तुम्हारा तो बस एक ही काम है, चार आवारा दोस्त, दो चार आवारा दोस्त, शराब क्लब और 2 टके की थर्ड क्लास अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियाँ, और बस इससे आगे का तुम सोच ही नहीं सकते। इनका लहजा इंतहाई तम्स कराना होगा, जिस पर जौदत ने खाना ख़त्म करके उठते हुए बड़े गौर से अपनी माँ के तेवर देखे। मॉम, सिर्फ तहज्जुद पढ़ना ही नेक काम नहीं है, नेक कामों की फहरिस्त बहुत तवील है। अगर इस वक्त आपको गिनवाने खड़ा हो गया तो मुझे यकीन है कि सुबह का सूरज तुलू होकर कल शाम तक गरूब भी हो जाएगा, लेकिन फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा आपके लिए मुख्तसर बता देता हूँ कि मुझे रास्ते में एक बुरी औरत मिल गई थी, बहुत मजबूर और बेबस थी। इसके बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो गया था, मगर इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के पास जा सकती, जिसके लिए जगह जगह भीख मांगती फिरी थी। मुझसे भी इसने भीख मांगी और अपनी प्रॉब्लम बताई, सो मैं रह नहीं सका, इसकी मदद करने चल दिया। और इस वक्त इस औरत को इसके बेटे के पास इस्लामाबाद छोड़ के आ रहा है। इसका बेटा शदीद ज़ख्मी था और अस्पताल में था, इसलिए वहाँ से वापसी पर इतनी देर होगी। और आप जानते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र कितना तवील और कितने घंटे का। और अगर फिर भी आपको कोई शक बाकी रह गया तो सुबह फ़ोन करके इस बुरी औरत से मेरी इस दास्तान की तस्दीक भी कर लीजिएगा और इसके बेटे की यारत भी। वो सारी बात नब्बे तो लफ्ज़ों में बयान करके अपना मोबाइल फ़ोन ये कहकर इनके हाथ में रख कर चला गया। वो सबसे पहला नंबर इस अस्पताल का, आप वहाँ से पता कर लीजिएगा। और सरवत बेगम हैरत और बेयकीनी से गूंग खड़ी रह गई। वो कभी अपने हाथ में रखे जौदत के मोबाइल को देख रही थी, तो कभी किचन से बाहर जहाँ जौदत गायब हो गया था। गुस्से से निकलते ने वही रवायती माँ वाला पछतावा सा हुआ कि उन्होंने गुस्से में अपने बेटे को ठीक तरह से खाना भी खाने नहीं दिया। हालांकि वो इतना लंबा सफ़र करके थका हुआ घर आया था। इनकी इन्हीं सोचों में फजर की अजान भी होने लगी और हवेली के बेशतर लोग नमाज के लिए उठने लगे, और सबसे पहले उठने वाली आसिया फंदी थी।
सरवत तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो भी किचन की लाइट चलती देख कर इधर ही आ गई, लेकिन सरवत बेगम को किचन के बीचों बीच किसी स्टैचू की तरह खड़े देखकर ठिठक गई। ठीक हूँ, बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। सरवत बेगम ने गहरी सांस लेते हुए जौदत का मोबाइल मुट्ठी में दबाकर हाथ नीचे कर लिया। ठीक है तो फिर वज़ू करो, मैं भी वज़ू करने ही जा रही हूँ। आसिया पंदीन का कंधा थपक कर चली गई और सरवत बेगम जौदत का मोबाइल रखने के लिए इसके बेडरूम में आ गई, जहाँ वो थकन के बायस इतनी सी देर में बेसुध सो रहा था। माँ ने भी अचानक अटैक कर दिया। बंदा पहले पहले पोछते लाया कि कितों आई गंदी औलाद। वो चाय का बड़ा सा मग हाथ में लिए चाय पीने के साथ साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर भी नज़र दौड़ा रहा था, जब अचानक डोरबेल की आवाज़ ने ज़रा सा चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने खुद से सवाल करते हुए बेसाख्ता बॉल क्लॉक की सिम देखा, जहाँ इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। और यहाँ लंदन में सुबह 8 बजे का वक्त भी रात के 4 बजे का वक्त समझा जाता था, इसलिए इस वक्त किसी की आमद पर हैरान होना एक लाजमी अमर था, क्योंकि ये वक्त यहाँ के बासियों के सोने का वक्त होता। यहाँ लोग अमूमन दिन के 11-12 बजे बेदार होना शुरू होते थे, और बेदारी का सिलसिला दिन के 3 या 4 बजे तक जारी रहता, यानी इन लोगों की सुबह दिन के 3 या 4 बजे होती थी। ख़ुसूसन औरतों की सुबह, क्योंकि बच्चों और मर्दों को जल्दी उठना होता था। बच्चे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठने पर मजबूर थे और मर्द अपने काम पर जाने के लिए। अलबत्ता जो मर्द हज़रात लेट काम पर जाते थे वो बीवियों के हमरा लेट ही बेदार होते, और जो जल्दी उठने पर मजबूर थे वो अपना नाश्ता भी खुद ही बनाने पर मजबूर होते, क्योंकि रात के 2:30-3 बजे सोने वाली माँ और बीवियों के सब पास इतना लाड प्यार हरगिज़ नहीं होता था कि वो सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों शोहरों के नखरे उठाएं और इन्हें नाश्ता बनाकर खिलाती। लिहाजा अपनी मदद आपके तहत वो लोग खुद ही रूखा फीका नाश्ता करके घरों से निकल जा खड़े होते। और ये बात यकीनी थी कि इन लोगों ने आज तक सुबह सुबह किसी औरत के हाथ से बने पराठे और चाय का जायका भी नहीं चखा था। वो चाहतों से भरे जायकों से महरूम जिंदगी जी रहे थे। इनके यहाँ खाने पीने में भी नाज नखरा नहीं चलता था। वो न्यूज़पेपर साइड पर रखकर दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ, अलबत्ता जहन में उभरती हैरानी और हाथ में पकड़ा चाय का मग साथ साथ था। जब तक दरवाजे पर पहुंचा, डोरबेल तीसरी बार बज चुकी थी। चंद सेकंड्स के तौक़ुफ़ से इसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन हैरानी ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई, जिसकी वजह सामने खड़ी हंसती थी। आप? बेसाख्ता मुँह से निकला। अस्सलाम वालेकुम। वो भी इसे सामने देखकर थोड़ा झिझकी। वालेकुम अस्सलाम, आप इस वक्त यहाँ? नबील हयात से अपनी हैरानी छुपाई नहीं छुपी थी। जी वो मैं मदिया से मिलने आई थी, इसने आहिस्ती से अपने ठहरे हुए मखसूस धीमेपन से जवाब दिया। ओ अंदर आइए। नबील हयात फ़ौरन सामने से हट गया। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे अंदर आ गई। ड्राइंग रूम में बगैर वॉल्यूम के टीवी चल रहा था। नाश्ते की प्लेट दरमियानी टेबल पर रखी थी, चाय का मग इसके हाथ में था, गोया इस वक्त वो अकेला बैठा नाश्ता कर रहा था। बाकी मदिया और आंटी वगैरह कहाँ है? इसने ड्राइंग रूम का जायज़ा लेने के बाद इस्तफसार किया, जबकि नबील हयात की नज़रें इसके एहतराम में झुकी हुई थी। वो इसकी सिम देखने से गुरेज कर रहा था। हमेशा इसकी कोशिश होती कि इसकी नज़र न भटके। आन लो, मैंने लगा था इतने मामला गड़बड़े। मॉम ज़रा लेट उठती है और मदिया के उठने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, लेकिन फिर भी इस वक्त दोनों सो रही हैं। आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। वो कहते हुए किचन की सिमत बढ़ा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी घर से नाश्ता करके निकली हूँ। इनफैक्ट अब्दुल्ला भाई ने किसी काम से आज बर्मिंघम जाना था, इसलिए मैंने कहा कि जाने से पहले मुझे ड्रॉप कर जाए। बाद में कोई ड्रॉप करने वाला नहीं होगा, इसलिए काफ़ी सुबह सुबह ही आ गया और आपको भी डिस्टर्ब कर दिया। इसने अपनी आमद की वजाहत बयान की और नबील हयात की नज़र उठते उठते इसके चेहरे को छुआई। हालांकि ऐसा इसका कोई इरादा नहीं था, नज़र की हरकत बेख्तियारी थी। 100% डिस्टर्ब? वो ज़ेर लब बड़बड़ाया। क्या मैं मदिया के बेडरूम में जा सकती हूँ? वो नबील हयात की खामोशी से उकता कर बोली, क्योंकि वो चुप चुप लग रहा था और बेहतर था कि वहाँ से जल्दी हट जाती। डिस्टर्ब तो तू वाकई कर चुकी कुड़ी उन्होंने आके। हाँ क्यों नहीं, वो अब की बार भी आहिस्ती से बोला। इसकी इजाज़त पाकर जरी फ़ौरन ही सीढ़ियाँ अबूर कर गई थी, जबकि वहीं का वहीं खड़ा था, चुप सोच में गुम और किसी गैर मनी नुक्ते को घूरता हुआ। यकीनन वो जरी के मुतल्लिक़ ही सोच रहा था। वो अब्दुल्ला की बहन थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, मशरक़ियत से मालामाल, हर लिहाज से परफेक्ट। और एक इसकी बहन थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, मगरबी रंग ढंग में पोर पोर डूबी, हर लिहाज से इनकम्प्लीट। जितनी जरी सुलझी हुई थी, इतनी मदिया बिगड़ी हुई थी। और इसमें कसूर किसका था? इस सवाल का जवाब अपने आप को न दे सका, क्योंकि जवाब देने के लिए अपने पिछले खाते खोल के देखना पड़ते, जो फ़िलहाल वो नहीं कर सकता था। मुबारक खान, मुबारक खान। वो हवेली की पिछली साइड पर बनी नेक्सी से निकलकर हवेली की बाईं साइड अबूर करती मरकज़ी हिस्से की तरफ आते पुकारी। इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी, कदम उजलत भरे लग रहे थे, और लॉन की नरम घास बने सैंडल्स के हील से कुचलते हुए बड़ी तेज़ी से दाएं साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर की सिमट बढ़ी थी। मुबारक खान, इसने एक बार फिर आवाज़ दी, मगर मुबारक खान मौजूद होता तो जवाब देता। जब वो मौजूद ही नहीं था तो जवाब कैसे आ सकता था? मुबारक खान, इसने सर्वेंट क्वार्टर के कोने में खड़े होकर एक बार फिर चीख कर पुकारा। इसका जी चाह रहा था मुबारक खान सामने तो उसका गला घोंट दिया कर वो कहाँ गायब हो गया था। अलीज़ा क्या बात है, मुबारक खान को क्यों बुला रही हो? आज़र अफंदी की आवाज़ पर अलीज़ा तेज़ी से पीछे मुड़ी। आज़र भाई आप कब आए? अलीज़ा के चेहरे से परेशानी का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। आज़र मज़ीद परेशान हुआ। वो भी हवेली वापस आया था। गाड़ी से आप पत्थरों से बनी रविश पर गोलाई की शक्ल में घूमती हुई पोर्टिको की सिमत आई तो आज़र की पहली नज़र अलीज़ा पर ही पड़ी, जो काफ़ी उजलत भरे अंदाज में सर्वेंट क्वार्टर की सिमत बढ़ रही थी और मुबारक खान को आवाज़ें दे रही थी, जिस पर फ़ौरन ही आज़र को किसी परेशानी या गड़बड़ का एहसास हो गया था।
मैं बस अभी आया, तुम बताओ क्या मसला, क्यों आवाज़ें दे रही हूँ मुबारक खान को? आज़ा ने ज़रा सख्ती से दोहरा के पूछा। वो आयशा पप्पो की तबीयत ख़राब है, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अलीज़ा आज़र के तेवर देखकर ठिठक गई। वो लड़कियों के मामले में बहुत सख्त था, लेकिन इसने सख्ती और खफगी कभी अलीज़ा पर ज़ाहिर नहीं की थी, क्योंकि वो इनकी सबसे छोटी और लाडली कज़न थी। बाकी सब की तरह वो भी इसे बहुत प्यार करता था। अलीज़ा आज़र से काफ़ी क्लोज भी थी। बाकी सब कहाँ? इसने लहजे की सख्ती हनूस थी। कोई भी घर पे नहीं है, अलीज़ा आहिस्तगी से बोली। क्यों, दानियाल, ज़ैन और जोतत वगैरह कहाँ गए? आज़र का अंदाज़ तफ्तीशी था, हालांकि आज़र बाकी काफ़ी बुर्दबार किस्म का आदमी था। अपने तमाम कज़न में सबसे बड़ा था, इसलिए कि अपने माँ बाप भी नहीं, इसके चचा ताया भी इस पर ही इन्हिसार करते थे, बल्कि वो इनकी इज़्ज़त और कदर करते थे, क्योंकि वो इनका बहुत समझदार, लायक फ़ायक और होनहार सपूत था। तहम्मुल और समझदारी इसकी शख्सियत के दो अहम रुकन थे। वो अपने से छोटे कज़न्स पर बिला वजह अपना बड़ापन और रौब जमाने की कोशिश करता था, ना ही इसने कभी दूसरे कज़न या फिर अपने बहन भाइयों की प्राइवेसी या मामलात में इंटरफेयर किया था। बस जो जैसा था ठीक है कहकर अपने काम से काम रखता। वो इज़्ज़त करना भी जानता था और करवाना भी। अलबत्ता लड़कियों के मामले में थोड़ा रूड था, लेकिन इसके बावजूद इसने लड़कियों पे भी कभी ज़्यादा या बिला वजह की रोक टोक हरगिज़ नहीं की। यही वजह थी कि इसके तमाम कज़न हकीकतन इसकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे। कोई भी बात कह देता वो फ़ौरन मुँह का मजा लाते। शायद इसकी खामोशी इसकी चुप से खाइफ रहते थे कि वो कहीं फट ना पड़े, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो एक नॉर्मल और डिसेंट पर्सन था। ਹੁਣ क्यों तड़फी ਜਾਂਦਾ है? मुझे क्या पता कि कहाँ गए? लीज़ा कंतिज कहते वापसी के लिए पलटी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं पुप्पो को अस्पताल ले जाता हूँ। आज़र लीज़ा का चुप होना भाप गया। पुप्पो की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो अकेली आपके साथ नहीं जा सकती, मम्मा को भेजती हूँ। वो कहते हुए वेली के अंदरूनी मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और आज़र सिर्फ देख कर रह गया। वो जान चुका था कि लीज़ा ने इसके सख्त लहजे को काफ़ी फील किया। वो सर झटक कर इस मसले को फिर कभी पर टाल कर नेक्सी की सिमत बढ़ा, जहाँ पहुँच कर इससे लीज़े की परेशानी का बखूबी अंदाज़ा हो गया, क्योंकि आयशा पप्पो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी और उनके पास सवाए अनुषा, आयशा पप्पो की बेटी को कोई भी नहीं था। और अनुषा इनके सराहने बैठी मुसलसल रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़कर सहला रही थी। आयशा पप्पो इस वक्त नींद बेहोशी की हालत में थी। आज़ा ने अनुषा को तसल्ली देते हुए आयशा पप्पो को अपने बाजुओं के सहारे उठाने की कोशिश की। वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, कभी भी इन दोनों में से कोई एक इन पर हावी हो जाता तो उनकी हालत इसी तरह गैर हो जाती। इस वक्त भी न जाने इनका बीपी लो हो गया था या फिर शुगर हाई हो चुका था, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर बेदम हो रहे थे। वो अपने कदमों पर खड़ी होने और चलने के काबिल भी नहीं थी। इनकी सक्कत ख़त्म हो चुकी थी। वो इन्हें लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो आसिया फंदी को पहले से मुंतज़िर पाया। आसिर, आयशा की तबीयत तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। आसिया फंदी ने गाड़ी में बैठकर आयशा फंदी का सर गोद में रखते हुए तशवीश का इजहार किया। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वो गाड़ी निकालते फिक्रमंदी से बोला था। फिर जैसे गाड़ी रोड पर डाली, इसने फ़ौरन डैशबोर्ड से अपना मोबाइल उठाकर दानियाल का नंबर डायल किया। इसने दूसरी रिंग पर कॉल रिसीव कर ली। आयशा पप्पा की तबीयत ख़राब है, तुम अभी अस्पताल पहुँचो, मैंने लेकर अस्पताल ही आ रहा हूँ। आज़ा ने एक ही सांस में बात ख़त्म करके इसका जवाब सुने बगैर कॉल खत बंद कर दी और साथ ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इसे पता था कि दानियाल माँ की तबीयत का सुनकर इनसे भी पहले अस्पताल पहुँच चुका होगा, क्योंकि इन तीनों बहन भाई दानियाल, ज़ैन और नुशा के लिए इनकी माँ ही सब कुछ थी। ज़ाहिरी बात है, माँ की तबीयत का पता लगा तो पहुँचना तो बनता ही है ना। बीबी, आपका नाम पूछ सकता हूँ? लहजा बेलचक सा था। जी, मोमिना, वो आहिस्ता से बोली। हाँ तो मोमिना बीबी, मैंने फ़ैसला किया, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो मजबूत और पुरज़म लहजे में बोला। इस लड़की के चेहरे पर जिंदगी चमक उठी। लेकिन एक शर्त। इसकी अगली बात ने इस लड़की के चेहरे की चमक बिल के ज़िंदगी नोच ली। इसने वहम वसवसों में घिर कर दिलावर शाह के सरदोस्पाट पथरीले तासरात वाले चेहरे की सिम देखा। क्या इसकी शर्त भी बाकी वकीलों जैसी थी कि आप किसी भी मोड़ पर जाकर पीछे कदम नहीं हटाएंगी, चाहे आप पर कितनी मुश्किल और मुसीबत क्यों ना आ जाए? आपने फिर भी हमेशा साबित कदम रहना, किसी भी चीज़ से घबराने। अगर ऐसा करना तो आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। आप अपना केस किसी और के हाथों में सौंप सकती हैं और आप यहाँ से जा सकती हैं। इसने दो टोक कहते हुए अपनी सोच का इजहार किया। इस मोमिना नामी लड़की का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। इसके चेहरे की चमक और ज़िंदगी वापस अपने मुकाम पर आ गई। वकील साहब, एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़की के लिए इसकी इज़्ज़त ही सब कुछ होती है, और जब वो इज़्ज़त ही नहीं रहती तो कुछ भी नहीं रहता। फिर किस मुश्किल और मुसीबत और आफत से डर भी नहीं लगता। मैं भी हर डर से आ रही हूँ और कभी कभी पीछे नहीं कदम हटाऊँगी, क्योंकि साबित कदम रहने के लिए, इंसाफ पाने के लिए मैंने बहुत से लोगों के कदम पकड़े, बहुत से लोगों के पाँव पड़ी हूँ, बहुत धक्के खाने के बाद आपके सामने बैठी हूँ इस वक्त। इस लड़की का लहजा और अंदाज़ बहुत मजबूत थे। दिलावर शाह की तसल्ली होगी। वो एकदम सोफे से खड़ा हो गया। ठीक है, फिर आप कल ही मेरे ऑफिस आकर अपना केस रिकॉर्ड करवा दें, बाकी का काम मैं देख लूँगा। वो कहते हुए जाने के लिए ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की सिम पड़ा, लेकिन अचानक कुछ याद आने पर ठहर गया और दोबारा वापस पलट आया। आई एम सॉरी, मुझे बताने का ख्याल ही नहीं आया कि मेरा ऑफिस लाहौर में है। आप इस्लामाबाद से लाहौर कैसे जाएंगी? इसका अंदाज मुतफक्र था। जी, मैं भी लाहौर की रहने वाली हूँ, लाहौर के साथ ही मेरा गाँव। मैं यहाँ इस्लामाबाद सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आप आजकल अपने इस्लामाबाद वाले घर पर मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी अम्मा जान से मिलने के लिए गए में। इसने वजाहत दी। फिर ठीक है, आप लाहौर पहुंचकर मेरे मुंशी से रब्ता कर लीजिएगा। वो जेब से कार्ड निकाल के इसे थमा गया और अंदर दाखिल होती बतूल शाह कुछ रिलैक्स हो गए। इन्हें अब यकीन हो गया कि इस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अव्वल तो दिलावर शाह कोई भी ऐसा वैसा केस हाथ में नहीं लेता था, और अगर लेता था तो फिर कभी हारने का सोचा भी नहीं था।
लाहौर हाई कोर्ट में इसकी अपनी एक साख थी। लोग जिस केस पर दिलावर शाह का नाम देख लेते इस केस के मुद्दे या मुजरिम को बिना केस लड़े जीता हुआ तस्वर करते थे, जैसे इस वक्त बतूल शाह कर रही थी। माँ सदके जाए ऐसा डाटा वकील कर लिया मोमना बीबी ने। इसने अपने भारी और बोझल सर को मुश्किल हरकत देते हुए गर्दन सीधी की और आंखें खोलकर बैठ के करीब खड़ी जरी को देखने की नाकाम कोशिश की। इसका सर और दिमाग ही भारी नहीं हो रहे थे, बल्कि आंखों के पपोटे भी भारी और बोझल महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से आंखें खुली नहीं रही थी। और इसकी ये मशकूक सी बहकी बहकी हालत जरी ने भी महसूस की, मगर अपने शक को झटक दिया। मदिया क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जरी ने झुककर इसकी पेशानी पर हाथ रखा और जरी के ठंडे हाथ का लमस एकदम इसके जिस्म में कपकपी दौड़ा गया। इसने फ़ौरन आंखें खोली, लेकिन फिर भी बोतल जहन को ठिकाने पर लाने के लिए इसे चंद मिनट लगे। आर यू ऑल राइट मदिया? इसने दोहरा के पूछा, साथ ही खोजती हुई गहरी नज़र इस पर मरकूज कर दी। येस आई एम फाइन। मदिया ने अपना तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश की, कंबल हटाकर पाँव बिस्तर से नीचे उतार लिया। रात को ड्राइंग रूम में होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी, हर सर्दो गर्म से बेनियाज होकर। लेकिन इसके करीब खड़ी फ़ायज़ा बेगम इसकी माँ थी। इन्होंने 9 माह से सर्दो गर्म से बचाया था। मैं पूछ रखा था, फिर अब इसे कैसे इस हाल पे छोड़ के पीछे हट जाती। वो रह न सकी और जैसे तैसे वो मुश्किल से सहारा देकर बेडरूम में छोड़ के, यहाँ तक कि इसकी जैकेट और जॉकर्स भी इन्होंने उतार कर रखे और कंबल भी वही उड़ा कर गई। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मदिया ने शदीद किस्म की अंगड़ाई रोकते हुए अपने घुंघराले बालों को दोनों हाथों से समेट कर पीछे किया। वो जरी के सामने खड़े होने का सोच रही थी कि कैसे अपना तवाज़न कायम रखे, क्योंकि इसको अपने लड़खड़ाने का अंदेशा पहले से ही था। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। जरी का लहजा शकी था। और यार फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, बस आज ज़रा लेट सोई थी, शायद 2-3 घंटे हुए हैं मुझे सोए हुए, इसलिए अचानक नींद टूटने पर जहन ठिकाने पर नहीं आ रहा। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मदिया नंगे पैरी उठ खड़ी हुई थी और लड़खड़ाने के डर से तेज़ तेज़ कदम उठाती वॉशरूम में बंद होगी। वो जल्द से जल्द चेहरे पर पानी के छींटे मार के दांत ब्रश करना चाहती थी, ताकि इसके मुंह से शराब की बूंद आ जाए। यकीनन जरी को नागवार गुजरती। इसने 2 से 3 बार ब्रश किया और फिर माउथ वॉश से पूरा मुंह हलक तक वॉश कर डाला। जब मुंह से खुशबूदार सांस खारिज हुई, तब इसे इत्मीनान हुआ। वो चेहरा धोकर वॉशरूम से बाहर निकल आई, जहाँ अपने जहन अपनी सोच से उलझती जरी इसकी मुंतज़िर बैठी थी। जरी जिस चीज़ के मतलब सोच रही थी, इस चीज़ के मतलब कुछ भी कहना नहीं चाहती, तो कहने ना कहने की कश्मकश इसे उलझा रही थी। क्या सोच रही हो? मदिया तौले से चेहरा पोंछकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और आईने में नजर आते जरी के अक्स को देखते हुए हेयर ब्रश उठाकर बाल सुलझाने लगी, जो इतने घने और उसको घिरियाले थे कि वो मुश्किल ही सुलझते थे। सोच रही हूँ कि आजकल तुम कहाँ बिजी होती हो? जरी ने अचानक कह दिया। मदिया के हाथ लम्हा भर को रुके और फिर से रवा हो गए। जहाँ पहले होती थी, जवाब पूरा था। पहले तो तुम मुझसे भी कांटेक्ट रखती थी, घर में भी आना जाना था। अब तो तुमने इतने दिनों से सब कुछ ही छोड़ दिया, ना अपनी खैर खबर ना हमारी। अंदाज खोजता हुआ लेकिन लहजा शिकवे से पुरता। बस मेरे फ्रेंड्स ब्रायन शेट्टे का कल रात बर्थडे था, बहुत दिनों से इस बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट में लगे हुए थे, इसलिए फुर्सत नहीं मिली। वो अपने बालों को सख्ती से बैंड में जकड़ते हुए बेड के सामने रखे सोफे पर धंस कर बैठ गई, अंदाज बेहद लापरवाह, जो जरी को हरगिज़ अच्छा नहीं लग रहा था। पाकिस्तान कब जा रहे हैं आप लोग? अब की बार इसने सीधा सीधा सवाल किया। इसके सवाल में मदिया के बोझल तासुरात एकदम सर्दो सपाट होकर सख्ती में ढल गए। वो जरी से जिस बात की तवक्का गई थी, इसने वही की थी। इसकी सोच सच साबित हुई। मैं पाकिस्तान नहीं जा रही। जवाब दो टोकता। क्यों? सवाल भी मुख्तसर है। जिसने तुम्हें पाकिस्तान जाने का बताया, इसने मेरे ना जाने का भी बताया होगा, इसलिए ये क्यों और क्या के सवाल करना बेकार है। मदिया बहुत बेलचक लग रही थी। लेकिन मदिया, इस तरह बात को टालकर तुम इस बात को दबा नहीं सकती, तुम्हें कुछ तो बताना ही होगा। जरी काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। तो क्या बताना होगा? इसने सवालिया नज़रों से देखा। इसकी नज़र सवालिया तासुर के साथ अलावा हर तअस्सुर, हर असर से आ रही थी। पाकिस्तान न जाने की वजह, आखिर क्या वजह कि तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? एक के बाद एक सवाल था। कोई वजह नहीं है, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ऐसे कैसे हो सकता है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और मैं तुमसे वजह जानना चाहती हूँ। जरी ने अपनी फ्रेंडशिप के बलबूते पर जोर दिया। हर चीज़ के पीछे आप लोगों का वहम भी तो हो सकता है। मदिया का अंदाज़ा अभी भी अजीब सा नॉन सीरियस था। एक बंदे को वहम हो सकता है, लेकिन सबको तो नहीं। जरी अपनी बात पर कायम थी। तर्ज फ़िक्र एक ही हो तो सबको वहम भी एक ही होगा। मदिया का जवाब भी दुरुस्त था, लेकिन इसकी बात के मानने वाले बहुत कम थे। अक्सर सभी इसकी बात से इख्तलाफी करते नजर आते थे, सो जरी को अभी भी इसकी बात से इख्तलाफ हुआ। सबका तर्ज फ़िक्र एक नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच सबके लिए एक सी होगी है। तुम सबको एक ही नज़र से देखने लगी। तुम्हारी नज़र में शेटे और जरीन मलिक में कोई फ़र्क नहीं है। तुम दोनों को एक ही तराजू में तोलती हो। जरी ने अपने मखसूस धीमेपन से हटकर बहुत देरी से जवाब दिया, जिस पर मदिया लम्हा भर के लिए खामोश थी होगी। जरी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। इसका लहजा मजबूत था और दो टोक भी। सिर्फ इज्जत? जरी बरजस्ता बोली। और क्या चाहती हूँ? इज्जत से बढ़कर भी कुछ है। मदिया संजीदगी से आगे। हाँ है, मोहब्बत, मान, रिश्ता, भरोसा, यकीन, सब कुछ। मुझे सब कुछ चाहिए मदिया, ताकि तुम मेरे सामने अपना आप छुपाओ मत, बल्कि अयां कर दो। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान ऐसे रिश्ते का मान चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बहन समझ के सब कुछ कह दो। मदिया चुपचाप गहरी नज़रों से जरी की अपनाइत देख रही थी, इसका खलूस जांच रही थी कि अचानक साइड टेबल पर रखा इसका मोबाइल गुनगुना उठा। जरी ने चौंक कर मदिया के मोबाइल की सिम देखा, कि जो इसके करीब ही रखा था, और जिसकी स्क्रीन पर जगमगाती तस्वीर ने एक पल में इसकी पूरी हस्ती बदल डाली। इसकी धड़कनें भागम भाग चल रही थी, इसे भूल गया कि इसके सामने कौन बैठा।
وہ کیا بات کری اور وہ کہاں موجود ہے؟ کس کا فون ہے؟ مدیہ نے زری سے استفسار کیا، لیکن زری کا دھیان کہیں اور تھا، وہ جواب نہ دے سکی، لہٰذا مدیہ نے اٹھ کر خود ہی کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو بھائی، اس کے انداز میں محبت، اپنائیت اور احترام قدر تھی۔ زری سے دیکھتی رہ گئی۔ مدیہ فون پر بات کرتے ہوئے اکثر مختلف مدیہ لگ رہی تھی، جس کے لفظ سے پیار کا رس چھلک رہا تھا۔ وہ کسی بات پر انکاری تھی، جبکہ دوسری طرف سے یقیناً اصرار کیا جا رہا تھا، جس پر اگلے چند لمحوں کے بعد چپ ہو گئی تھی۔ چلو آ گیا ادھر بھی اسرار، چلو مدیہ بی بی پنو عثمان اتھیا پر رہ کے بغیرتی مانیہ چلیے پاکستان۔ اس کی اتنی طویل اور گہری چپ اس کا اقرار کا اعلان کرنے لگی۔ جتنی اس کی چپ گہری تھی، اتنی اس کی سوچ اور سوچ کی گہرائی سے بہت ہی نازک مقام تک لے گئی، جہاں سے اس کے انکار کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں نکلتی، اور اب یہ بات طے تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ مقابل اس کا بھائی تھا۔ بے شک لوگوں کی نظر میں اس کا دلاور شاہ کا رشتہ منہ بولے بہن بھائی کا تھا، لیکن اس رشتے کی قدر وہ سگے رشتوں سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر مقام پر اس رشتے کے حوالے سے ایک دوسرے کا مان بڑھایا تھا، اور کبھی بھی اس رشتے کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ ان دونوں کو اپنائیت اور چاہت دیکھ کر کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان کا رشتہ خون کا رشتہ نہیں، بلکہ منہ بولا رشتہ ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں سگے بہن بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کو چاہتے اور عزت و احترام کرتے تھے۔ مدیہ کو بہن بنانے کے بعد دلاور شاہ اپنی زندگی میں بہن جیسی کمی کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا تھا، اور دوسری طرف مدیہ بھی اس رشتے کے بعد اپنے آپ کو دو بھائیوں کی بہن سمجھنے لگی۔ وہ زندگی میں نبیل حیات کی بات تو ٹال سکتی تھی، لیکن دلاور شاہ کی نہیں، کیونکہ مدیہ کے معاملے میں وہ خود بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بھی ہمیشہ مدیہ کی بات کو فوقیت دیتا، اس کے مقابل چاہے کوئی بھی ہوتا، وہ صرف اور صرف مدیہ کی بات کو ہی اہم جانتا تھا۔ تو پھر اب یہ کیسے ممکن تھا کہ مدیہ سے انکار کر کے فون بند کر دیتی؟ موبائل فون کی دوسری طرف بالکل خاموشی سے اس کے انکار اور اقرار کا منتظر تھا، جبکہ مدیہ اپنے ضدی اور ہٹ دھرم کے حالات کو آمادہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں پلنے والی ضد کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا وہ سب مٹی کا ڈھیر ہوتا نظر آ رہا تھا، اس کے سرکش عزائم دھورے رہ کے صرف اور صرف دلاور شاہ کا مان رکھنے کی خاطر۔ اور اس لمحے سے محسوس ہوا کہ کسی رشتے کا مان رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو زہر کا گھونٹ بھی پینا پڑ جاتا۔ اور آج اس نے بھی یہ زہر چکھ لیا تھا، اپنے اندر کی ضد و جنون کو اپنے بھائی کی محبت کا لبادہ اڑاتے ہوئے فیصلے کا اختیار دلاور شاہ کو سونپ دیا، اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے فون بند کر کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اور قریب بیٹھی زری دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ مدیہ دلاور شاہ کی کتنی عزت کرتی ہے۔ عزت کر دی ہے تو پھر مننی ہے نا۔ دانیال ہسپتال توقع ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے بڑی حویلی کے مخصوص فیملی ہاسپٹل میں موجود تھا، جہاں سے وہ اپنے مخصوص ڈاکٹر سے اکثر علاج معالجہ کراتے تھے، اور وہی ڈاکٹرز ان کے بطور فیملی ڈاکٹر بھی کام کرتے تھے، اور ان میں ایک ڈاکٹر ظفر بھی تھے جو عائشہ افندی کے معالج تھے، اور کافی عرصے سے وہی ان کا علاج کر رہے تھے۔ اس وقت وہ انہیں ڈاکٹر ظفر کے پاس ہی لے کر آئے تھے۔ آذر کی گاڑی دیکھتے دانیال لپک کر قریب آیا۔ کیا ہوا امی کو؟ اتنی اچانک طبیعت کیسے خراب ہوگی؟ اس کے چہرے پر پریشانی سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آذر کی گاڑی سے اترنے سے پہلے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ اتنی جلدی طبیعت کیسے خراب ہوگی۔ وہ تو علیزہ نیکسی کی طرف گئی تو پتہ چلا کہ عائشہ کی طبیعت خراب ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آذر اسے لے کر اسپتال جا رہا ہے۔ آسیہ افندی دانیال کو بتاتے ہوئے گاڑی سے اتر آئیں، جبکہ عائشہ افندی کو آذر اور دانیال نے مل کر سہارا دیا اور پارکنگ سے اندر ہسپتال تک لے آئے۔ ڈاکٹر ظفر اس وقت آن ڈیوٹی تھے۔ انہوں نے عائشہ افندی کی حالت کے پیش نظر فوری ٹریٹمنٹ شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ اگر تھوڑی دیر اور وہ لوگ ان کو لے کر نہ آتے تو یقیناً عائشہ افندی کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ ان کا بی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جسم سے جیسے جان ختم ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے لگ رہے تھے، اور اس کی ایسی سنگین حالت کے بارے میں جان کر وہ تینوں خاموش ہو کے رہ گئے۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ آذر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دانیال سے استفسار کیا۔ ماموں کے ساتھ آفس میں تھا۔ دانیال متفکر سے سر جھکائے بیٹھا دل ہی دل میں ماں کے لیے دعا گو تھا۔ اور باقی سب؟ آذر کو نہ چاہتے بھی تمام لڑکوں کی غیر موجودگی پر غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ غصہ ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ باقی سب مجھے بتا کر تو نہیں جاتے؟ دانیال خفگی سے بولا۔ لیکن زین تو تمہیں بتا کر جا سکتا ہے نا، وہ تو تم سے چھوٹا، خبر رکھا کرو۔ آذر نے اسے تنبیہ کی۔ کیا جودت اپنی خبر رکھنے دیتا ہے، یا پھر جہاں جاتا بتا کر جاتا ہے آپ کو؟ چھوٹا تو وہ بھی ہے۔ دانیال کے طنزیہ جواب آذر کو سلگا کر رکھ گئے۔ گال تو صحیح ہے، دانیال نے بڑا موقع چوکا ماریا کہ پائی تیرا پر آتے نہ رکھا تھا، تیرا میرا رکھے گا، ایڈا ہے تو رہندہ نہیں۔ تم میری بات کا الٹا مطلب کیوں لے رہے ہو؟ کیونکہ آپ الٹی بات کریں۔ جو لوگ آپ کو سمجھانے سے باز نہیں آتے وہ میرے سمجھانے سے کیسے باز آئیں گے؟ ان کے نزدیک جو ویلیو آپ کی وہ میری نہیں ہے، پھر بھی وہ بات نہیں مانتے۔ اس میں کس کا قصور ہے، میرا یا آپ کا؟ دانیال صوفے سے درست کہہ رہا تھا، جس کا اندازہ آذر کو بھی ہو گیا۔ آج کی نسل بھلا کس کے قابو میں تھی؟ یہاں ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دی جاتی، وہ تو پھر بھائی کے عہدے پر تھے، اور بھائی ہونے کے ناطے وہ لوگ ان کی عزت کر لیتے تھے، تو یہ بھی ان کا احسان تھا۔ آذر چپ ہو چکا تھا۔ دانیال اٹھ کر آئی سی یو کی سمت آ گیا، جہاں عائشہ افندی کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ بھائی امی کو کیا ہوا؟ دانیال کے کب سے زین کی ہانپتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ شاید بہت عجلت میں یہاں تک آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی وہی پریشانی رقصہ تھی جو دانیال کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ وہ زین کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا، اور اگلے 1 گھنٹے میں ڈاکٹرز نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی، لیکن اس کے باوجود ان کو 24 گھنٹے کے لیے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ان کی طبیعت کی خرابی کا سنتے ان کے تینوں بھائی وقار افندی، اسرار افندی اور اظہار افندی فوراً ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وقار افندی نے عائشہ کی طبیعت معلوم کرنے کے بعد دانیال اور زین کو بطور خاص قریب بلا کر تسلی دلاسا دی اور حوصلہ
मजबूत रखने का और वकारफंदी के तसल्लियाँ दिलासे और प्यार मोहब्बत और बचपन से लेते आ रहे थे। जब भी ऐसी वैसी वैसी बात होती तो अपनी भांजी भांजों को इसी तरह पास बुलाकर बिठाकर प्यार और तसल्ली से समझाते थे। इनकी इतनी मोहब्बत और तवज्जो पे लोग सचमुच समझ भी जाते थे। इस वक्त भी वो इन दोनों भाइयों को इनकी मौजूदगी से बहुत ठारस मिली थी। हालांकि बाकी दोनों मामू भी बेहद अच्छे थे, मगर बड़े मामू की तो बात ही और थी, जिनको वो बाकी सबकी तरह डैडी कहते थे। डैड तो कोई ज़रूरत ज़्यादा ही चंगा बनया है। वर्कशॉप के अंदर कदम रखते इसने सारे पर एक तायराना सी निगाह दौड़ाई। सारा माहौल और सब कुछ वही था जो किसी भी वर्कशॉप का होना चाहिए था। वही पेट्रोल डीजल की नागवार वो, वही टूटी फूटी सी मरम्मत के इंतज़ार में खड़ी गाड़ियाँ, वही टायर ट्यूब और पंचर लगाने का सामान, और वही गाड़ियों को सर्विस के लिए कोने में मखसूस जगह। वहाँ सब कुछ फिट और परफेक्ट था सवाए अदील नियाजी के, जो अभी भी एक नज़र वर्कशॉप को देख और एक नज़र अपनी फ़ाइल को देख रहा था। एक नज़र देखने में इसका खून जलकर राख होने लगा। तभी इसने बाइम्तियाज़ के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी फ़ाइल लोहे के कील पुर्जों से हटी शेल्फ पर डाल दी और इस पर आमदनुमा खुले से कमरे में बैठ के जहाँ बाइम्तियाज़ के छोटे मुलाजिम ने कुर्सी डाल दी थी। ये छोटा इस वर्कशॉप का सबसे अहम और कारआमद पुर्जा, बाइम्तियाज़ ने छोटे के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर इसका तारुफ करवाया। इसके बगैर ये वर्कशॉप बेरंग है, यहाँ का रौनक है तो इसी से। अदील ने इनके लफ्ज़ बेरंग और रौनक पे हैरत से एक बार फिर वर्कशॉप के हाथे में नज़र दौड़ाई कि बाइम्तियाज़ ने किस चीज़ को रंग और रौनक नाम दिया। वह ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पर इस वक्त रंग था और वो छोटे के बगैर बेरंग हो जाती थी। इसे तो चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियों और पुराने टायरों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया था। बाऊ दिल, किसी के दम से जो रौनक और रंग होते हैं ना, वो इंसान के दिल में होते हैं, माहौल में नहीं। तुम्हारे दिल में रौनक होगी तो तुम्हें ये काट कबाड़ से हटा वर्कशॉप भी जन्नत से कम नहीं लगेगा। दिल के लॉन में उठती तमस्कराना सी हैरत बाइम्तियाज़ ने एक पल में नोट की और इसका जवाब भी दे मारा, जिस पर अदील मज़ीद हैरत से दो चार हुआ, शर्मिंदा भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि आपने छोटे का तारुफ करवाया भी तो कैसा। आप इसे एक अहम और कारआमद पुर्जे से तशबीह दे रहे हैं। दिल को अपनी बेरबत और खोई खोई सी कैफियत से निकल कर अपने हिसाब ठिकाने पर लाने पड़े। जब यहाँ आई गया था तो यहाँ के माहौल को करीब से जानना और समझना भी ज़रूरी था। जब भी अपने अंदाज़ोद्वार को संभाला दिया पुर्जा इसलिए का कि आजकल हम एक मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा इंसानों के बगैर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मशीनों और इसके पुर्जों के बगैर नहीं होता। ये छोटा तो माशाल्लाह एक ऐसा पुर्जा जो किसी भी वक्त कहीं पे भी फिट हो जाता है। तुम अगर गाड़ी के नीचे लेट कर इसे ठीक नहीं कर सकते तो यही पुर्जा जो गाड़ी के नीचे घुस कर तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। बगैर गाड़ी को चेक लगाए भी ये गाड़ी के नीचे जा सकता है। इन्होंने फ़खरी अंदाज में छोटे की खूबियाँ बयान की और दिल बेसाख्ता इससे मुतासिर होने वाले अंदाज में मुस्कुराया। क्या इसके अलावा कोई और पुर्जे भी हैं या नहीं? इसने जानबूझकर पुर्जे पर जोर दिया। बाइम्तियाज़ इसकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। अरे क्यों नहीं, पुर्जे होंगे तो वर्कशॉप चलेगा ना। ओए जेदी सल्लू, इधर आओ, अपने इंचार्ज से मिलो, कल ही दरियाफ्त हुआ है। इन्होंने एक बुलंद और तेज़ आवाज़ से कई दूर गाड़ी ठीक करते दो लड़कों को करीब बुलाया। जी उस्ताद अभी आए। वो फ़ौरन हाथों में पकड़े और सारे एक तरफ डालते हुए इनका हुक्म बचा लाए थे और हाथों और कपड़ों को झाड़ते हुए करीब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने नए चेहरे को काफ़ी एहतराम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अदील ने उठकर दोनों से हाथ मिलाया। ये जेदी और ये सल्लू। सल्लू को अगर पूरा नाम से पुकारना चाहो तो सलमान खान भी कह सकते हो, क्योंकि सल्लू की दादी को बहुत शौक है कि लोग इसे सलमान खान कहकर पुकारें। दरअसल इसकी दादी अपनी जवानी से सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। यूँ समझ लो दोनों हानी होंगे। ये तो इनकी दादी ने शादी कर ली और बूढ़ी नजर आने लगी, वरना वो भी सलमान खान की तरह बुढ़ापे में भी जवान रहती है। आखिर बैचलर लाइफ भी कोई चीज़ होती है। ओए होए, गल तो सही है। अच्छा वैसे मैं सलमान खान की एज ज़्यादा ना, मैं अपनी अम्मी को छेड़ती थी, मैं अम्मी सलमान खान ना तुहाडे तो वड्डा होगा। मेरी अम्मी इतना लड़ती है मेरे से, कहती नहीं सलमान खान मेरे तो वड्डा नहीं है, मेरे जिन्ना होएगा या मेरे तो छोटा है। मैं क्या नहीं, मैं क्या पहली बुढ़ी देखी कि मतलब अपनी एज ना कह रही है कि मेरी उम्र ज़्यादा है। मैं क्या नहीं, सलमान खान बड़ा है बड़ा। मैं क्या तेन मनना पैना। मैं क्या जितनी देर तुम मनोगे ना मैं तो हिलने नहीं देना। मैं अपनी अम्मी के साथ से कहती होती हूँ ये सलमान खान आपसे बड़ा। मैं कहती नहीं सलमान खान नहीं बड़ा मेरे को। मैं क्या है बड़ा, अम्मी नहीं मानती मेरी। बाइम्तियाज़ की दिलचस्प वजाहत और सल्लू के तारुफ पर बाकी सबकी तरह वो भी हंस दिया। वहाँ मौजूद जेदी, सल्लू और छोटा बेतहाशा हंस रहे थे और दिल सबके बेफिक्रे चेहरे को देख कर रह गए। बेशक वो सब भी किसी न किसी मजबूरी और ज़रूरत के तहत यहाँ काम करे थे, लेकिन फिर भी चेहरों से आज़ाद और बेफिक्र लग रहे थे। शायद इसलिए कि इनके कंधों पर वैसे बोझ नहीं थे जैसे दिल न्याजी के कंधों पर थे, जिसकी वजह से इसके कंधे नहीं बल्कि सर भी हम वक्त झुका रहता था। वो खुल के हंस नहीं सकता था, वो खुल के बोल नहीं सकता था, क्योंकि इसके एहसास आज़ाद नहीं थे। वो सोच की मजबूत मट्ठी में जकड़े हुए थे। इसके असाब पर इसके हालात का पैरा था, जिनसे हटकर वो कुछ नहीं कर सकता था, अपनी कैफियत का इजहार भी नहीं। जोदत, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था जब कोमल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जोदत इसकी आवाज़ पर फ़ौरन इसकी सिम पलटा। जी आपा, क्या फ्री हो इस वक्त? कोमल ने इसकी तैयारी देखते हुए फ़ौरन ही भांप लिया कि वो कहीं जाने के चक्कर में। आपके लिए फरागत निकालते कौन सा देर लगती है, बस हुक्म करो आप। वो परफ्यूम की शीशी पर कैप चढ़ाकर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए इंतहाई सादतमंदी से बोला। वो नुशा को अस्पताल छोड़ना था। है ये नुशा ने अस्पताल कब से ज्वाइन कर लिया? वो काफ़ी गैर संजीदा लग रहा था। जौदत, कोमल ने सरजनिश करने वाले अंदाज से कहा। जी जाने दो जौदत, वो एक अदाज से बोला और कोमल खपकी से घूरने लगी।
حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری نہیں کسی اور کی جان بننا چاہتی ہیں. اینی وے ہماری جان کوئی اور بن جائے گی، وہ زمانی لہجے میں کہتا. این کومل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی بات پہ کومل کی نظر چکی. مبادہ کچھ حیا نہ ہو جائے. فکر نہ کریں، میں آپ کے راز افشا نہیں کروں گا. ویسے جہاں آپ نے ہاتھ مارا نا وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. جہاں لوگوں کے دل تھک تھک کرتے ہیں وہاں ان کا دل کام اور صرف کام ہی کرتا رہتا ہے. جودت نے کومل کو چھیڑتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی اشارے کر ڈالے. وہ بڑے دنوں بعد نظر آئی تھی، اس لیے سے زج کرنے پر تلا ہوا تھا، بلکہ وہ اکثر ایسے ہی کرتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا. فضول مت بولا کرو، چلو نیچے نوشا انتظار کر رہی ہے. کومل اس کی باتوں کو نظر انداز کر گئی. آپ کی محبت کا ذکر اگر فضول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے. وہ الٹی سیدھی ہانکتا کومل کے پیچھے بیڈ روم سے نکل آیا. کہاں جا رہے ہو؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے احمد نے پوچھا. کومل آپا جہاں لے جائیں، وہ کندھے اچکا کر شاعر سے بولا. کومل نے آگے چلتے ہوئے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اسے گھورا اور اتنے میں بری طرح کسی سے ٹکرا گئی. آزرا اچانک ہی ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے سے باہر آیا تھا اور اندر داخل ہوتی کومل کو دیکھ نہ سکا. ٹکراؤ خاصا شدید تھا. جودت اپنی بوکھلاہٹ اور ہنسی چھپانے کے لیے رخ موڑ گیا، جبکہ چکراتے دماغ کو سنبھالتی کومل آزر کو دیکھ کر مزید چکرا گئی. احمد کے سامنے ایسا تصادم گھبراہٹ اور خفت کا باعث تھا، اور خفت اسے آزر اور جودت سے بھی ہو رہی تھی. آر یو آل رائٹ؟ آزر نے ذرا ٹھہر کر اسے تصدیق چاہی، کیونکہ کومل اپنی پیشانی سے ہلا رہی تھی اور دوسرا ہاتھ اپنی ناک پر رکھا ہوا تھا. پیشانی سے بھی زیادہ چوٹ اس کی ناک پر لگی تھی. جی میں ٹھیک ہوں، اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا. اتنی سخت چوٹ پر آنکھوں میں آ جانے والے پانی کو جلدی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر پہنچ دیا. آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں پایا. آزر نے معذرت کی، حالانکہ غلطی کومل کی تھی جو آگے بڑھتے ہوئے پیچھے کی طرف جودت کی طرف دیکھ رہی تھی. اٹس اوکے، کومل پر مشکل کہہ پائی. اسے اس وقت تین لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتے ہوئے کوفت اور بیزاری ہونے لگی، اس لیے وہ وہاں مزید رکے بغیر اندر چلی گئی اور آزر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن کچھ خیال آ جانے پر اگلے پل ٹھہر بھی گیا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے احمد اور جودت کو بیک وقت مخاطب کیا. میں تو اس وقت جم جا رہا ہوں، البتہ جودت کا کیا ارادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. احمد نے کندھے اچکائے. جی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آزر کا لہجہ طنزی ہو چکا تھا. میں انوشا کو ہسپتال ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، وہ پپا سے ملنا چاہتی ہے. جودت نے شرافت سے جواب دیا. کوئی ضرورت نہیں جانے کی، پپا گھر آ چکی ہیں. آزر کہہ کر سینیاں چڑھ گیا اور احمد کوریڈور کی سمت مڑ گیا، جبکہ جودت وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا رہ گیا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر قدم ڈرائنگ روم کی سمت بڑھا دیے. لیکن جو کچھ وہ دل میں ٹھان کے اندر داخل ہوا تھا وہ سب اسے فوری ملتوی کرنا پڑ گیا، کیونکہ وہاں ایک آدمی پورا ٹولہ موجود تھا. حرمت مدت، کومل، جویریہ اور انوشا کو دیکھ کر اسے آزر کی بات یاد آ گئی. پپا گھر آ چکے ہیں، شاید دانیال انہیں سیدھا نیکسی میں لے گیا. جودت کی اطلاع پر وہاں ایک دم ہلچل مچ گئی اور سب سے پہلے صوفے سے چھلانگ لگا کر اٹھنے والی انوشا تھی. جلدی اور عجلت میں اپنی چپل کی بجائے جویریہ کی چپل پاؤں میں پھنساتی وہاں سے نکل گئی، بھاگ نکلی. اپنی ماں کی آمد کی خبر سنتے ہوئے سب کچھ بھول بھال گیا. جودت وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا. کینوں بہتر رہ گیا، انوشا نو کہ کسی اور نو؟ وہ پچھلے 5 دن سے مسلسل تھکن اور رچکے کا شکار تھا. اس کی ذہن پہ کوئی ٹینشن سوار تھی اور وہ اس وقت اس ٹینشن کا کوئی حتمی حل نکالنا چاہتا تھا، اس لیے جو فیصلہ اور عزم وہ کر چکا تھا اب اس پر ایک بار پھر غور کر رہا تھا، اور اسی غور و فکر نے اس کی آنکھوں سے نیند کا تعلق ختم کر رکھا تھا. اسے پتہ تھا کہ اسے پرسکون نیند اسی وقت آئے گی جب وہ کوئی حتمی فیصلہ کر لے گا، اور آج کی رات فیصلے کی رات تھی اور اس نے اپنے ایک عمر کے ارادوں پر آخری فیصلے کی مہر لگا دی، جس کے بعد وہ حقیقتاً تھوڑی دیر کے ریلیکس ہو گیا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، ایک مضبوط فیصلہ. وہ گہری سانس خارج کرتے راکنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے تمام پردے ہٹا دیے. صبح کا سورج نمودار ہونے کے لیے انگڑائیاں لے رہا تھا، اور تمام پرندے ایک نئی صبح، ایک نئے تحفے پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے اس کی ذات کا شکر ادا کر رہے تھے. زندگی چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد پھر سے جاگ اٹھی تھی. نئی امیدیں، نئے عزم و تمنائیں لے کر صبح کے ننمہاٹے ہر چہرے سے عیاں تھیں. اس کی نظر کوارٹرز کی سمت اٹھی. کل اپنے کوارٹر سے نکلتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرتی گھر کی اندرونی سمت میں آ رہی تھی، اور جہاں سے اس کے دن بھر کے کاموں کا آغاز ہوتا، اور اس آغاز کے لیے پہلا قدم کچن میں رکھتی تھی. کیونکہ وہ صبح صبح جاگنگ وغیرہ کا عادی تھا، اس لیے جاگنگ اور ایکسرسائز کے بعد اسے جوس کی فوری شدید طلب ہوتی، لہٰذا گل پہلا کام جوس بنانے کا کرتی. لیکن پچھلے 4-5 روز سے نہ جاگنگ پہ گیا نہ ہی ایکسرسائز کی، اس لیے گل کو اس سے پوچھنا پڑا. صاحب آپ کے لیے چائے بناؤں یا جوس؟ دروازے پر دستک دے کر گل آج بھی یہی سوال لے کر آئی. چائے، وہ آہستگی سے کہتا کھڑکی سے ہٹ کے. سنو، گلاب خان کہاں ہے؟ اس نے باہر نکلتی گل سے پوچھا. صاحب وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، گلاب خان چوکیداری پر معمور تھا. ٹھیک ہے، اسے کہو اخبار دے جائے. جی ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں. مسارت مندی سے سر ہلا کر دروازہ پڑھنے لگی. ٹھہرو جی صاحب، باقی کام تم بعد میں کرنا، پہلے گلاب خان سے کہو بلڈوگ کی اس کی خوراک دے. میرا خیال ہے اس نے ابھی سے دودھ نہیں پلایا. اس نے پلٹ کر کھڑکی سے نیچے جھانکا اور ایک نظر بلڈوگ کو دیکھا جس کی بے چینی بھوک کا اعلان کری تھی. جی ٹھیک ہے، گل کہہ کر چلی گئی اور وہ پلٹ کر واش روم میں آ گیا. آج کورٹ میں اس کے ایک کیس کی آخری سماعت تھی. کیس اہم تھا، اس لیے جانا ضروری تھا. شاور لے کر وہ کافی حد تک فریش ہو چکا تھا. وہ تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل بجا. السلام علیکم، کال ریسیو کرتے اس نے کہا. دوسری طرف لاء چیمبر سے اس کے منشی قادر کا فون تھا. وہ اس کے آنے نہ آنے کے متعلق پوچھ رہا تھا. آ رہا ہوں میں، تم کیس کی فائلز تیار رکھو. اس نے مختصر کہتے ہوئے فون بند کر دیا. صاحب چائے اور اخبار. گل نظر جھکائے ہوئے اندر آئی. یہ اس کی شرم و حیا کا سب سے بڑا ثبوت تھا. وہ ایک ایسی شریف اور
वो थी ही ऐसी शरीफ और नेक। एक मुलाजमा होने के बावजूद दिलावर शाह इसकी बहुत इज्जत करता और इस चीज़ पर गुलाब खान को भी एतबार था। जभी तो अपनी जवान जहां खूबसूरत बीवी को घर के अंदर काम करने की इजाज़त दे रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि इसका मालिक सख्त तीखा गुसीला तो है मगर नज़रबाज नहीं। रख जाओ और आज नाश्ता मत बनाना, मुझे ज़रा जल्दी निकलना। वो चाय की ट्रे मेज़ पर रखने का इशारा करके खुद अपने शूज़ निकाल कर पहनने लगा। जैसे आपकी मर्ज़ी, वाइस्की से कहकर चली गई। वो शूज़ पहनने के बाद चाय का कप उठाते हुए अखबार में सामने फैला के रख दिया। वही रोज़मर्रा की सियासत, क्राइम और शोबिस की सनसनीखेज़ खबरें थी जो हर रोज़ थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद अखबार की सीनत बना दी जाती। और अखबार पढ़ने के शौकीन लफ्ज़ों और जुमलों के हेर फेर से खुश होकर चटखारे लेते रहते और अगले रोज़ वही अखबार रद्दी में जाकर समोसे पकौड़े बर्गर और नान वगैरह लपेटने के काम आ जाता। गोया अखबार का इतने काम था, मज़ा भी ले लिया और काम भी चला लिया। वो घर से निकल रहा था जब बतूल शाह का फ़ोन आ गया। जिन दिनों वो लाहौर में होता, वो रोज़ाना सुबह के वक्त से कॉल करती थी। दिलावर शाह के लिए इनकी कॉल भी रूटीन का हिस्सा थी, वो कभी मिस नहीं होती थी। जी मैं कोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़तह पाओगे, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। इन्होंने दिल से दुआ दी। वो इनका फ़ोन सुनते हुए दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और गुलाब खान ने गाड़ी स्टार्ट होते देखकर गेट खोल दिया। आप घर पर हैं कॉलेज में? इसने बतूल शाह से इस्तफसार किया। नहीं, अभी तो नाश्ता करने लगी हूँ, और तुम्हें पता है मैं कल कॉलेज थोड़ा लेट जाती हूँ, बतूल शाह ने से याद दिलाया। मगर जब मैं इस्लामाबाद में होता तब तो आप काफ़ी जल्दी चली जाती हैं। इसकी हैरत और एतराज़ पर बतूल शाह बेसाख्ता मुस्कुराई। पागल, मैं जल्दी नहीं जाती, बल्कि तुम लेट उठते हो, और जब तुम उठते हो इस वक्त मेरे जाने का टाइम हो चुका होता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं जल्दी जा रही हूँ। इनके जवाब पे वो ठिठक सा गया और इनकी वजाहत समझ में आते मुस्कुराते वो गलती पे था। सॉरी। सॉरी किस लिए? आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, जब तुम यहाँ होगे तो ज़्यादा लेट जाया करूँगी, ताकि मेरे बेटे को शिकवा ना हो। वो इनकी इतनी चाह, इतनी ममता पर एकदम चुप हो गया। रिश्तों के नाम पर इनके पास और था ही कौन सवाए दिलावर शाह के, और इस भरी दुनिया में दिलावर शाह का भी और कोई अपना नहीं था सवाए इनके। इन दोनों के अपने और सगे रिश्ते बस एक दूसरे पे ही ख़त्म होते थे। कोई अपना, कोई तीसरा नहीं था, बल्कि कहना चाहिए कि तीसरा था तो सही, मगर कोई से निकल गया था। वो कोई कौन था, ये सोचकर इसके जहन और दिल जलते तंदूर पे जा गिरे थे। इसके हाथों की ग्रिप स्टीयरिंग पर सख्त हो गई, यहाँ तक कि इसके हाथों की रगें उभर आई। लब भेजकर इस तरह दांत पे दांत जमा लिए कि जबड़ा टूट जाने का खदशा हो चुका था। गुस्से के बाइस आंखों में सुरख डोरे तैरने लगे थे, यूँ जैसे खून आंखों में जम गया हो। बात करते करते अचानक इसकी खामोशी और खामोशी के बाद इसकी मौजूदा कैफियत बतूल शाह ने आंखों से ओझल रहकर भी जान ली। वो किसी अहम केस के लिए जा रहा था, इसलिए वैसे हवा देकर मज़ीद शोला नहीं बनाना चाहती थी। जब भी ज़ुबान पर आया जिक्र भी वापस पलट दिया, और साथ ही से रिलैक्स करने के लिए किसी और का जिक्र छेड़ दिया, जिसका जिक्र माँ के बाद आता था, यानी माँ और फिर बहन, पहले बतूल शाह फिर मदिया हयात। मदिया से बात हुई तुम्हारी, कैसी है वो? इस ठंडे मीठे रिश्ते के जिक्र से बहलाने और ध्यान बटाने की कोशिश की गई, लेकिन चोट गहरी और दर्द शदीद हो तो बहलना आसान नहीं होता। दिलावर शाह का ज़ख्म ताज़ा था, मगर जब जब खुरेंड उतरता था, बासी ज़ख्म ताज़ा ज़ख्म को भी मात दे जाता। टीसें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी, और ऐसे आलम में वो अक्सर पागल हो जाता, और अपने इस पागलपन के हाथों शायद तो दूसरों को भी पागल कर डालता, अपने जुनून की भेंट चढ़ा लेता। अगर इसे संभालने वाली बतूल शाह ना होती, वो इसके सब हालतों और सब कैफियतों से वाकिफ़ थी, इसलिए चाहे मुश्किल से ही सही, मगर वो इसे हैंडल ज़रूर कर लेती थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शाह। मूड प्यार का होता तो इसे शाह पुकारती थी। क्या कहा आपने? वो अपने जुनून को ठहराते हुए बोला। मदिया का पूछ रही हूँ, इन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। ओह हाँ, पाकिस्तान आ रहे हैं वो लोग। ध्यान की तना पे इनकी बात की तरफ मोड़ते हुए वक्त दिक्कत हो रही थी। हैं? कब? तुमने पहले तो नहीं बताया। बतूल शाह को सुनकर खुशी भी, क्योंकि एक नबील को ही तो फैमिली थी जिनके साथ वो खुश होता था, और जिनके जिक्र पर इसके चेहरे पर हकीकी खुशी देखने को मिलती। इनका प्रोग्राम कभी बन रहा था, कभी कैंसिल हो रहा था, इसलिए नहीं बताया। कब आ रहे हैं कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन नबील की कोशिश है इस मंथ के लास्ट फ्राइडे तक आ जाए। कौन कौन आ रहा है? बतूल शाह अपने सवालात का सिलसिला बढ़ा रही थी। नबील, मदिया और फाइज़ आंटी। और भाई साहब? इनका सवाल दिलावर को भी खामोश करा गया, और इनकी खामोशी से मुमकिन जवाब अखज़ कर चुकी थी। कहाँ होते हैं आजकल? इन्हीं के मतलब दूसरा सवाल। कनाडा। इसका लहजा सर था। क्या इन्हें पता है कि नबील लोग पाकिस्तान शिफ्ट कर रहे हैं? आई डोंट नो, मैंने पूछा ही नहीं। इसने सर झटका। चलो, अल्लाह इन्हें खैरियत से लेकर है। वो सद के दिल से बोली। आमीन। वो जवाब नाइस्की से बोला। ठीक है अम्मा, मैं फ़ोन बंद करता हूँ, इस वक्त चैम्बर पहुँच चुका हूँ। इसने गाड़ी पार्क करते हुए बतूल शाह से अलविदाई कलमात की और फ़ोन बंद करके हैंड फ्री डैशबोर्ड पर डाल दी। किंडे को इन्ना जनूनी होया पर दिलावर शाह किनू टूड़ मारने वास्ते तैयार है, सानू भी दस दियो। फ़ाइज़ा बेगम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चली गई। इनकी नज़रों का मरकज़ जरी थी। जरी बेटी आई है। अंदाज में शौक और प्यार तो लहजे में बला की नरमी, वही नरमी जिससे मदिया को चिड़ और कोफत होती, बल्कि अब तो गुस्सा भी आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप उठ गई? मैंने आपका पता किया था, आप सो रही थी। वो काबिल हस्ती के अंदाज़ त्वार की नरमी भी कुछ कम नहीं थी। वो भी आखिर ज़रीन मलिक थी, जिसको इसके घर वाले मोम की गुड़िया और मिट्टी का माधु भी कहते थे। हर एक के लिए अच्छी, हर एक के लिए प्यारी, सब के लिए अपना दिल में नरमी और चाह का जज्बा रखती थी। कोई कुछ भी कहते था, बुरा नहीं मनाती थी, और अगर मनाती थी तो जाहिर नहीं करती थी। हम वक्त सुकून और ठहराव का लबादा ओढ़े ना जाने कैसे जी लेती थी। मदिया सोचती तो वहशत से बिदक जाती कि सब कुछ दिल में रख कर नहीं जिया जा सकता, और ये काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था।
کسی اور کے لیے نہیں، صرف مدیحہ حیات کے لیے، جو اپنی باتیں، اپنے فیصلے، اپنے ارادے ببانگ تہل کہہ دیتی، جس نے چپ رہ کر اور بات دل میں رکھ کر جینا نہیں سیکھا تھا، جو ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیتی تھی، بات منہ پر کہہ دینا اس کی عادت تھی، اور ایسا کرتے وقت سامنے والے کا نہ ہی کوئی ڈر رکھتی تھی اور نہ لحاظ۔ دوسرے لفظوں میں سے کچھ چیز کو بے مروتی بھی کہا جا سکتا، اور اس بات کا تو خود بھی اعتراف کرتی تھی کہ سوری، میں مروت نہیں نبھا سکتی، اور یہ اعتراف کرتے وہ خاصی لاپرواہ اور بے نیاز ہوتی، لیکن اس کے برعکس زرین ملک ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شفاف، خاموش اور سبک ندی کی مانند لڑکی مدیحہ جیسی ضدی، ہٹ دھرم اور جنگجو لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں تصویر کے دو رخ تھے اور دونوں کو اپنے علاوہ دوسرا رخ پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے بے حد قریب تھی۔ مزاج کے تضادات کے باوجود دونوں کی فرینڈ شپ قائم و دائم تھی، لیکن ایک بڑی عجیب بات تھی، دونوں ایک دوسرے کے دل کے حال سے انجان اور ناواقف تھی۔ البتہ یہ بات اور تھی کہ مدیحہ کے دل کا تو کوئی حال سرے سے تھا ہی نہیں، وہ دل اور دل کے حال سے فی الحال دور تھی، اور جو حال زری کے دل کا تھا وہ اس نے مدیحہ سے دانستہ چھپا رکھا تھا، صرف اس ڈر سے کہ اپنی عادت اور فطرت سے مجبور مدیحہ کبھی بھی اس کا راز نہیں رکھ سکے گی، بلکہ کسی نیوز کی طرح خبر نشر کرتی پھرے گی، اور زری فی الحال اپنے آپ کو نشر کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جب بھی مدیحہ کی نگاہ سے بچ کر رہتی، اسے محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میرے دل کی دھڑکنیں صرف دھڑکنیں نہیں ہیں، بلکہ کسی کے نام کا راگ بھی الاپنے لگی ہیں۔ جہاں اس کے نام کی ڈور چھوٹتی ہے، وہیں پہ ایک دھڑکن بھی چھوٹ جاتی ہے۔ مجھے نبیل نے بتایا کہ زری آئی، خود تو کہیں باہر چلا گیا، میں نے سوچا ناشتہ بعد میں بناتی ہوں، پہلے تم سے مل لوں۔ تم بتاؤ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ میں انتظار ہی کرتی رہی کہ تم آؤ گی عبداللہ کے ساتھ، لیکن کئی بار آیا، کئی بار گیا، مگر اکیلا۔ انہوں نے افسوس اور محبت سے شکوہ کیا۔ بس میرے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے بزی تھی۔ زرین کی محبت بھرے شکوے پر مسکرائی، اور مسکرائی تو مدیحہ بھی تھی، لیکن تمسخرانہ جیسے کہہ رہی ہوں، باری مروت، کسی کی یاد چاہے آئے چاہے نہ آئے، لیکن جب وہ ملے تو مروتاً کہہ دو جناب میں تو آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، بڑی لمبی عمر ہے آپ کی۔ سامنے والا بے ساختہ خوش ہو جائے گا، یعنی مروت نبھ گئی ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ یہی حال اس وقت بھی تھا زری اور فائزہ بیگم کے بیچ۔ مدیحہ مسکراتی تو نہ کیا کرتی، نگارش کہاں ہے، تم اسے بھی ساتھ لے آتی۔ بھابھی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے نہیں آئی۔ کیوں، خیریت کیا ہوا اسے؟ وہ متفکر ہوئی۔ ہاں، وہ سردی کی وجہ سے ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن وہ کوڈامول لے کر کچھ بہتر ہو دیر لیٹ جائیں تو جلدی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، زری نے وضاحت دی۔ لیکن بیٹا تمہیں میرا کہنا تو نہیں برا لگے گا، مگر میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اس کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ ان کی دبی دبی سرزنش پر زری مسکرا کر سر اسبات پہنانے لگی۔ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آنٹی مجھے یہاں بھابھی نے خود بھیجا، حالانکہ میں نے آنے سے انکار بھی کیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنے دنوں سے مدیحہ سے اور آپ سے نہیں ملی، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ چند ہی دنوں میں آپ یہ ملک چھوڑنے کے پاکستان جا رہی ہیں، بعد میں پتہ نہیں کب ملاقات ہو، اس لیے آج کے دن سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے کہتے ہوئے گردن ترچھی کر کے مدیحہ کو دیکھا، جو پاکستان کے ذکر اور پہلو بدل کر رہ گیا، اور اس کی اس حرکت پر فائزہ بیگم نے بھی ایک نظر اسے دیکھا۔ پھر اسے ان کا انکار اور رات والی حرکت یاد آ گئی، پھر ان سے مزید اس کے بیڈ روم میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، وہ نہ جانے زری سے کیا کہہ کر فوراً واپس ہو گئی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ مدیحہ کو لب پھینچے خاموش بیٹھے دیکھ زری قریب آ گئی، جبکہ مدیحہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنی وارڈروب تک چلی گئی۔ وارڈروب کا چوتھے نمبر والا پٹ کھول کر بلیک لیدر کا بیوٹی باکس نکال کر 3 ہندسوں کا پاس ورڈ ڈائل کیا، اور کلک کے ساتھ بیوٹی باکس کا لاک اوپن ہو گیا۔ اس نے اپنے کالج، یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس، بینک کے کاغذات اور کریڈٹ کارڈز کے ساتھ ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی اس میں سنبھال رکھا تھا۔ کوئی بھی ایمرجنسی پڑنے کی صورت میں وہ اپنے بیوٹی باکس اٹھا کر کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی تھی، باقی لوگوں کی طرح اپنی ضروری کاغذات اور اشیاء ڈھونڈنے کی کوفت نہیں اٹھانا پڑتی۔ اس نے بیوٹی باکس کی اندرونی پاکٹ کی زپ کھول کر اپنا پاسپورٹ نکالا اور خود پر بڑا ضبط کرتی ہوئی پلٹ کر زری تک آئی۔ یہ لو، نبیل بھائی کو دے دینا، اس نے جیسے اپنے پر کاٹ کے زری کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ زری اس کا پاسپورٹ دیکھ کر اندر سے خوش ہوئی کہ چلو ان لوگوں کا تو مسئلہ حل ہوا نا، لیکن مدیحہ کا انداز اور اس کے تاثرات دیکھ کر اسے برا بھی لگا۔ تم تو ایسے دے رہی ہو جیسے احسان عظیم کر رہی ہو۔ ہاں، احسان عظیم ہی ہے، اگر یہ لوگ مجبور نہ کرتے تو میں یہ احسان بھی کبھی نہ کرتی۔ وہ تلخی اور سختی کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے تمہیں کب مجبور کیا؟ تم تو زری کچھ کہتے رہی۔ ہاں، میں دلاور بھائی کے کہنے پر مجبور ہوئی ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ ان کو یہ بات کہنے کے لیے کس نے کہا، کس نے مجبور کیا؟ صرف اور صرف میرے گھر والوں نے۔ ان کو کوئی احلام تو ہونا نہیں تھا، بس خوش قسمتی ہے ان کی کہ بیچ میں دلاور بھائی آ گئے۔ لیکن زری یہ مجھے کبھی سدھار نہیں سکتے۔ میں پاکستان تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ لوگ پچھتائیں گے، مجھے وہاں لے جا کر بھی پچھتائیں گے۔ مدیحہ مدیحہ ہی رہے گی، چاہے پاکستان میں رہے چاہے انگلستان میں۔ وہ اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرتے پھنکاری، اور زری حقیقتاً اس کے ارادے سے خائف ہو گئی۔ مدیحہ پلیز، یہ کیا پاگل پن ہے، کیوں بے وقوف بن رہی ہو؟ زری نے اسے باز رکھنا چاہا۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ کون پاگل ہے، میں یا پھر یہ لوگ۔ اس کے عزائم نیک نہیں تھے۔ زری چپ ہو کے رہ گئی۔ اسے بھلا کتنا سمجھاتی، اور اتنا اگر سمجھاتی بھی تو وہ کون سا سمجھنے والی تھی۔ تھوڑی دیر اور اس کے پاس بیٹھنے کے بعد زری جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ مدیحہ کو پتہ تھا کہ عبداللہ شہر نہیں، اس لیے اسے پک کرنے نہیں آئے گا۔ تمہارے ساتھ۔ زری نبیل کے ساتھ جانے کا سوچ کر جھجکی، اس لیے فوراً اپنی ذمہ داری مدیحہ پر ڈال دی۔ یعنی میرا ہی سر اور میرے ہی جوتے، مجھ سے ملنے آئی اور میں ہی چھوڑ کر آؤں؟ مدیحہ مصنوعی کفگی سے کہتے ہوئے کھڑی ہوئی، زری مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں۔ سامنے ٹیبل، اور نبیل اور فائزہ بیگم دونوں مل کر کوئی چیز خاکی رنگ کے کارٹن میں بند کر رہے تھے، اوپر سے پیکنگ ٹیپ لگا کر اسے مزید مضبوط پیکنگ کی شکل دے رہے تھے۔ پچھلے 2 روز سے اپنی ضروری چیزیں اور سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ ارے تم جا بھی رہی ہو؟ اتنی جلدی؟ بیٹھو تو صحیح۔ فائزہ بیگم سب چھوڑ چھاڑ کے قریب آئیں۔
आंटी 3-4 घंटे तो गुजार लिया, अब और कितना बैठूं। लेकिन बेटा वो इसे ज़्यादा इशारों में मजबूर करने से रुकी। इनकी नज़र जरी के हाथों में पकड़े पासपोर्ट पर ठहर गई और इनकी आंखों में बेयकीनी फैल गई। ये पासपोर्ट यकीनन मदिया का था। मैरून रंग का पासपोर्ट ब्रिटिश होने का सबूत था। इस सबूत को पिछले कई दिनों से इल्तिजाओं से मांग रहे थे, लेकिन इसने नहीं दिया और आज हैरत का मुकाम था, वो मान गई। ये मदिया का पासपोर्ट, आप इसकी टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं। मदिया के कहने पर जरी ने पासपोर्ट नबील की सिमटी बढ़ाया और नबील ने इसके हाथ से पासपोर्ट लेते बेसाख्ता मदिया की तरफ देखा। वो नज़र फेर गई। इसे एहसास ही नहीं था कि जरी के हाथ से इसका पासपोर्ट लेते नबील को कितनी सुबकी और हित तक का एहसास हुआ था। वो ऐसे अपनी बहन पर इख्तियार नहीं था। वो दूसरों से सिफारिश करवाता फिरा था। वो सबकी बात मानने पर तैयार थी सवाए इसके इनकी। फ़ाइज़ा बेगम और नबील चुप रह गए। नबील को पता था कि इसने किसके कहने पर पासपोर्ट दिया। चलो जरी, मुझे देर हो रही है, मैंने अपने फ्रेंड से भी मिलने जाना है। मदिया से मतवजह करती खुद बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ गई। मजबूरन जरी को इन दोनों माँ बेटा से नज़र चुरा कर इजाज़त लेना पड़ी और इसके पीछे बाहर निकल आई। मदिया अपनी जीन्स से गाड़ी की चाबी निकाल कर लॉक खोल रही थी। जरी खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी, किस ट्राई का ज़रूरी साथ कीजिएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। हम आज अच्छा नावल था, बहुत फास्ट इतना लॉन्ग था कि समझ ही नहीं आई हीरोइन एमन थी या कश्यप। बात तो सच है, मगर बात रसवाई की हुआ तो कुछ ऐसा ही था नावल में। थैंक यू हमाद शाह। आमरा तो फैल जहान सिकंदर ने टॉली और अब अकरब ने जहाना बन के। आर्मी वाले कुछ ज़्यादा ही ख्वाजा सरा बन के बीवियों को नहीं मिलते। अब तो वाकई में हर लड़की को मुड़ मुड़ के इनको देखना चाहिए, क्या पता कौन आर्मी एजेंट और किस्मत में आपको मिल भी जाए। हुआ तो कुछ ऐसा ही है पीछे। थैंक यू आमरा। बस आपने अब ध्यान से रहना, हर बंदे पे कड़ी नज़र रखनी है। लेविस से ज़्यादा लॉन्ग नावल सुनने का टाइम नहीं मिलता। बहुत दिनों बाद नावल सुनना है, टाइम नहीं मिलता। ज़बरदस्त। थैंक यू लेविस सलोन। लेकिन टाइम बिज़ी हैं आप, वाकई आप काफ़ी दिनों बाद आई हैं आप। हालांकि यार लॉन्ग नावल सुनना ना आसान होता है कि मतलब उसको पता डेली घंटे घंटे का टाइम है, तो वो बंदा स्पीड बढ़ा के तो जल्दी सुन लेता है। बाकी जो दूसरे वाले होते हैं वो ज़रा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। मुस्तक खां सईद, वालेकुम अस्सलाम। आ गई हैं आप? किधर थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अली बेग, अच्छा नावल था। थैंक यू अली बेग। इरम शब्बीर, वालेकुम अस्सलाम। मिस आई एम गोइंग टू रीड योर नावल। अच्छा, ये जो आपने 2 नावल के मांगे थे, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिए इरम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं इरम? दिस नावल इज़ एक्सीलेंट, आई हैव ऑलरेडी रीड इट, प्लीज़ अपलोड दिल दर्द से खाली नहीं इन सिंगल लेंथ। आई लव नावल्स ऑफ नीलम रियासत, प्लीज़ रिकॉर्ड हर दिलर आल्सो। ठीक है इंशाल्लाह इरम, मैं जल्दी कोशिश करूँगी आपके लिए उसको एडिट करके ना अपलोड करूँ। आमरा तो फ़ैल बहुत मज़े का था, स्पेशली उमर और समीर को पढ़ के बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच आमरा। खान अज़मी, ज़बरदस्त, हमेशा की तरह लाजवाब, आपकी आवाज़ ही काफ़ी है नावल को हिट करने के लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच खान अज़मी। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त नावल सिस्टरीज़, थैंक यू वेरी मच बुशरा। अबसार हैदर, बहुत अच्छा नावल है आपकी आवाज़ में डियर, थैंक यू वेरी मच अबसार हैदर। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। तो अभी मैं देख रही थी वीकली के लिए, तो पहले तो ताहा एंड रहील और दूसरे नंबर पे मलिक सबा, फिर जुल्फ़िशा खान। ये 3 नाम हैं जिनका आया है जो इस वीक के हैं टॉप कमेंटर में से एक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और मेरे से बहुत सारा हार्ट्स भी लिए हैं। तो ऐसा है कि आप तीनों मुझे इस वीक में बता दें, मतलब ये जो वीक अभी स्टार्ट हुआ हुआ इस वीक में आप अपनी पसंद का कोई एक शॉर्ट नावल बता दें, तो वो मैं आपके लिए रीड करूँगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बाकी भी जल्दी करें, देखते हैं कौन रिकॉर्ड तोड़ता है इनका, और आप लोग भी बता दें मुझे, आप तीनों। तो अभी ऐसा है, हालांकि अभी ये तीनों बंदियां अभी कमेंट नहीं करती, अभी एक्टिव नहीं है इतनी, बहुत कम कमेंट्स आते हैं मलिक सपा के भी, जुल्फ़िशा के भी और ताहा एंड रहील के भी, TR व्लॉग के भी। इनके अब के कमेंट्स, हालांकि नहीं तो पहले इनके हर एपिसोड पे कमेंट्स होते थे, तो लेकिन अभी उधर ये शो हो रहे हैं, इनके नाम शो हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और मैं आप लोग को एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, उसको धमकी नहीं समझनी है आपने, बल्कि मैंने इसके ऊपर अमल कर गुजरना है। मैं इतना आप लोगों का पिछले में इतना अच्छा रिस्पांस था, इतना बुरा, इतना फजूल रिस्पांस आ रहा है ना, मेरा तो कसम रिकॉर्डिंग करने को दिल ही नहीं करता। अभी भी मैंने जाना है आउट ऑफ सिटी, तो लेकिन मैं आप लोगों के लिए बैठी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। लेकिन आप लोगों का जब इस तरह से रिस्पांस आता है तो फिर मेरा दिल नहीं करता कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए।
باقی دیکھتی ہوں اب آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے. میں نے پہلے ناول کے سٹارٹ میں بتا دیا, اگر تو رسپانس اچھا ہوا تو ناول کنٹینیو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے, مجھے بھی اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.